Hadi. ها؟ ما بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر سال ہمارے اجتماع میں اجتماع کے دوسرے دن مقامی اعمال سے متعلق مجلس ہوتی ہے۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے وہ آپ حضرات کو کوئی جانکاری دینے کے لیے نہیں ہوتی کہ کوئی چیز آپ حضرات نہیں جانتے ہیں تو آپ کو اس مجلس کے ذریعے سے سمجھائیں، اس کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ جن اعمال کا مذاکرہ ہوتا ہے اس کے ہمارا پورا مجمع اچھے سے جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، بلکہ سمجھانے والا ہے۔ آپ حضرات علاقوں میں جاتے ہیں تو علاقوں والوں کو آپ حضرات ہی سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ہماری مجلس کوئی سمجھنے سمجھانے کی نہیں ہے، بلکہ ہم سب اجتماعی طور پر ایک کام میں، ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، تو غیر محسوس طریقے پر کبھی ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے۔ یہاں جاؤ رمضانی، کبھی ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اس مذاکروں کے ذریعے سے ہماری وہ کمزوریاں کیسے دور ہو جائے اس کی فکر دلانا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری کوئی چیز اگر آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہ معمولی نقصان نہیں کرتی، بہت بڑا نقصان کرتی ہے۔ بھئی ایک آدمی سائیکل پر چلتا ہے تو سائیکل سے گرے گا تو سائیکل جیسی چوٹ لگے گی، اور کوئی جہاز سے گرے گا تو جتنی اونچی سواری اس پر سے گرے گا تو اتنی بڑی چوٹ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ تو کار نبوت بہت بڑا کام، سب سے کاموں میں سب سے بڑا کام ہے، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس سے بڑی کسی کی بات ہی نہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ سب سے بڑی بات، اسی کے لیے نبی آتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کہ یہ کیا کام کرتا ہے؟ نبیوں کی جو بعثت ہوتی ہے، ہم اندازہ کریں گے تو نبیوں کی بعثت اکثر بگڑے ہوئے لوگوں میں ہوتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ بگڑے ہوئے لوگوں میں نبیوں کی بعثت ہوتی ہے، اور نبیوں کی بعثت بگڑے ہوئے ماحول میں ہوتی ہے۔ ماحول بھی بگڑا ہوا ہو اور لوگ بھی بگڑے ہوئے ہوں، وہاں نبیوں کی بعثت ہوتی ہے۔ اور نبیوں کی محنت سے کیا ہوتا ہے کہ نبیوں کی محنت سے وہ بگڑا ہوا ماحول بھی بنتا ہے، اور نبیوں کی محنت سے بگڑے ہوئے لوگ بھی بن جاتے ہیں۔ آپ سارے نبیوں کا زمانہ دیکھیں کہ بگڑے ہوا زمانہ، بگڑا ہوا ماحول۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جس وقت بعثت ہوئی ہے وہ زمانہ سب سے بڑا، زمانوں میں سب سے بڑا بگڑا ہوا زمانہ۔ اس سے پہلے اتنے دور گزرے ہیں، لیکن کسی ایک دور کو بھی اللہ نے خود یہ نہیں کہا یہ جاہلیت کا زمانہ، مگر نبی کے دور کو یہ فرمایا کہ یہ کون سا زمانہ؟ نبی کی بعثت سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ۔ تو کتنا خطرناک ہوگا؟ اس زمانے میں جو فساد تھا، نہ اس سے پہلے کبھی فساد ہوا، نہ اس کے بعد آج تک کوئی فساد ہوا۔ ابھی جو ماحول میں گندگی ہے تو ہم لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس گندگی کو نبی علیہ السلام کی بعثت کے موقع کی گندگی پر تقابل کریں گے نا، تو آج کے زمانے کی گندگی ہلکی لگے گی۔ اس زمانے میں لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، آج کوئی کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی، آج کوئی کرتا ہے؟ اس زمانے میں لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے، آج کوئی کرتا ہے؟
ऐसे चीजें तोलते चले जाओ तो उस जमाने का फसाद इतने ऊपर तक पहुंचा हुआ था, और उस जमाने के लोगों का बिगाड़ इतना ऊंचा पहुंचा हुआ था। एक होता है जाहिल कि कोई चीज को नहीं जानने वाला, एक है जाहिलियत कि वो चीज उससे चिपक गई, वो चीज उससे चिपक गई कि अब जो भी काम करेगा वो उल्टा ही करेगा वो, क्योंकि वो चीज उससे चिपक गई। तो इसको कहते हैं जमाने जाहिलियत। तो उस जमाने के लोग ऐसे खराब, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत से माहौल भी बना और लोग भी बने, और कैसे शानदार बने कि उस जमाने को बेहतरीन जमाना कहा गया कि बेहतरीन जमाना है, और उस जमाने के लोगों को बेहतरीन लोग कहा गया। ये नबी की मेहनत से हुआ। एक जमाने के बाद अल्लाह ने उस शक्ल से मुशाबह, उस शक्ल से मुशाबह तरीक़ाकार अल्लाह ने हमको अता फरमाया जिसके जरिए से एक तरीक़ाकार अल्लाह ने जो हमको दिया, तो हम हमारा माहौल किसी न किसी दर्जे में संभलने लगा, और हमारे लोग भी संभलने लगे, हमारे लोग भी संभलने लगे, और हम थोड़े से पीछे चले जाएं, थोड़ा ज़माना पीछे जाओ, जब हम लोग तबलीग में नहीं लगे थे या हमारे इलाकों में तबलीग नहीं आई थी, उस ज़माने को सोचो। आपने अपने बूढ़ों से सुना हो या आपने खुद देखा हो कि क्या माहौल था, माहौल कैसा था। हर आदमी अपने इलाके के माहौल को पुरानों के जहनों से सोचे कि कैसा माहौल था, और लोग कैसे कैसे खुराफात में थे। चंद साल गुजरे हैं इस तरीक़े कार से मेहनत करने के नतीजे में अल्लाह ने कैसा पलटा खिला दिया, लोगों में कितना सुधार और तब्दीली आई। ये देखो, इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है, तो लोगों में इसके जरिए से जो सुधार आया उसको गौर करो, और माहौल में जो सुधार आया, तब्दीली आई, उसको गौर करो। हालांकि हम कौन है कि हमारे साथ गंदगियां लगी हुई है, हम गंदे लोग इस काम को कर रहे हैं। नबियों का जो मजमा है वो बेऐब मजमा है कि अल्लाह पाक उनको गुनाहों से बचा लेता है। बेऐब अल्लाह की ज़ात है, मगर अंबिया को भी अल्लाह पाक गुनाहों से बचा कर रखते हैं, वो मासूम होते हैं। उन शख्सियत ने वो काम किया। हम तो गुनहगार लोग हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम में से एक एक से ऐसे ऐसे गुनाह हुए हैं कि अगर अल्लाह हमारे गुनाहों का पर्दा उठा दें तो शायद हमें कोई कुर्सी पर बैठने भी ना दे। तो अल्लाह ने हमारे साथ सत्तारी का मामला किया। तो एक तो करने वाले हमारे जैसे कमज़ोर लोग, और जिस काम को हम कर रहे हैं उसको हम टूटा फूटा कर रहे हैं, सही तरतीब से नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद इसके अल्लाह ने इतनी असरात ज़ाहिर फरमाए कि हमारी अमूमी फ़िज़ा किसी दर्जे में बनना शुरू हो गई, और अल्लाह ने इसकी बरकतें ऐसी ज़ाहिर फरमाई कि हमारे लोगों को के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई। तो जब इतनी बड़ी चीज़ होगी तो शैतान ऐसा थोड़ी चाहेगा कि ये मजमे में चलनी चाहिए, चाहेगा इसको। तो कोशिश करेगा, शैतान की कोशिश ये होती है कि या तो पहले तो ये चीज़ चलनी ही नहीं चाहिए। क्या कोशिश करेगा? अरे बोलो भाई, चलनी ही नहीं चाहिए, और जहां चल गई वहां सीधी सीधी नहीं चलनी चाहिए, वहां ढंग से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ढंग से चली तो उसके अच्छे नफ़े जाहिर होंगे, अगर ये बिगड़ गई तो फिर उसके नफ़े कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो शैतान ये कोशिश करता है या तो पहले तो चले ही नहीं, और जहां चले वहां कैसे चले। अरे भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना भाई, इतना बोलो कोई सोए नहीं, सोने वाले जाग जाएं। या तो चले ही नहीं, और चले तो वो ज़रा एड़ी टेढ़ी हो जाए तो उसके नफ़े, क्योंकि आमाल का तकाजा जो होता है ना, आमाल उसके दोनों असरात होते हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छे असरात, और खुदा न करे अगर अच्छे नहीं हैं तो उसके असरात दूसरे हो जाते हैं। सारे अमलों के असरात ये। मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ता है, अगर नमाज अच्छी हो गई
तो नमाज ये कहती है कि हाफिज़कल्लाह कमा हाफिज़तनी, अल्लाह तेरी ऐसी हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की। अब उस एक आदमी ने नमाज तो पढ़ी मगर उसको खराब किया, तो फिर वो नमाज ये नहीं कहती कि अल्लाह तेरी हिफाजत करे, वो ये कहती है अल्लाह तुझे ऐसे ज़ाये कर दे जैसे तूने मुझे ज़ाये कर दिया। दय्यअकल्लाहु कमा दय्यतनी। ऐसे सारे फराइज के रोज़ा अच्छा है तो आसमान पर जाएगा, और बदले में ये कहते हैं अल्लाह पाक कि रोज़ा मेरे लिए और बदले में मैं खुद हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। और अगर उसी रोज़े को आदमी खराब कर दे तो फिर वो रोज़ा जब इफ्तार करता है तो अल्लाह कहते हैं तेरे लिए कुछ नहीं सिवाय भूखे और प्यासे रहने के, कि उसके मनफी असरात पड़े। ऐसे हर अमल तिलावत अच्छी करे तो आसमानों पर जाती है, एक हरफ पर 10, 50, 100 नहीं की। वही तिलावत अगर खराब हो जाए तो कुरान ये कहता है, कुरान के हदीस में आता है कि कुरान बद्दुआ करता है, रब्ब क़ारिइन वल कुरानो यलानु अलैह, कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान खुद बद्दुआ उस पर करता है। तो ऐसे ये काम अच्छी शक्ल से हो तो उसके अच्छे असरात, और इस काम की शक्ल खराब हो जाए तो फिर उसके असरात भी खराब हो जाते हैं। तो ये जो मुज़ाकरे होते हैं ना, वो ये दो निस्बतों से, एक तो अल्लाह ने जो हमको तौफीक दी वो चलता रहे, जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो क्या होता रहे और चलता रहे, एक तो ये फिक्र होती है। और दूसरी फिक्र ये होती है कि वो अच्छे रुख से चलता रहे। क्या रहे बोलो? एक तो चलता रहे और दूसरा कैसे चलता रहे? अगर ये चलता रहा तो उसके जो जुड़े हुए नफे हैं वो खुद ब खुद जाहिर होना शुरू होंगे। अगर ये चलना रुक गया तो भी, और जैसे चलना चाहिए ऐसे नहीं चला तो भी उसके नफे रुक जाएंगे। उसके नफों में क्या चीजें हैं का सबसे पहली चीज ये होती है कि जिन आदमियों को ये चीज काम लगता जाता है वो उन लोगों में तब्दीलियां लाता है। सोच में तब्दीली, फिक्र में तब्दीली, जज्बात में तब्दीली, रहन सहन में तब्दीली, सारी चीजों में तब्दीली लाता है। तो इसको यूं कहेंगे कि लोगों में सुधार लाता है। क्या लाता है बोलो? अगर ये चलता रहा तो ऐसे चलता रहा जैसे चलना चाहिए तो ये लोगों में तब्दीलियां लाता है, अफराद अच्छे पैदा करता है, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनकी फिक्रें अच्छी हो, जिनके जज्बात अच्छे हों। दूसरा, अगर ये चलता रहा और अच्छे से चलता रहा तो इसके असरात ऐसे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता माहौल में तब्दीली लाएगा। क्या लाएगा बोलो? और ये दोनों चीजें हमारी जरूरत की चीज है। माहौल में तब्दीली रहे वो भी हमारे जरूरत की चीज, और हमारे साथ रहने वाले लोग अच्छे रहें वो भी हमारे जरूरत की चीज। ये दोनों हमारी जरूरत की चीजें। क्यों? कि ये दोनों चीजें सब पर असर करती है। ये दोनों चीजें, यहां जाओ मली साहब, यहां जगह खाली है। ये दोनों चीजें सब पर, अगर साथी अच्छे हैं तो हम अच्छा नहीं बनना चाहेंगे तो भी हमको वो साथियों के जरिए से हम अच्छे बन जाएंगे। और खुदा ना करे अगर किसी के साथी अच्छे नहीं है, किसी को साथी अच्छे नहीं मिले तो वो बुरा बनना नहीं चाहते, मगर उनके साथियों का संग उनको बुरा बना देगा। किताबों में ऐसा लिखा है कि किसी आदमी को देखना हो वो कैसा है तो यूं कहा उसको मत देखो वो कैसा है, ये देखो वो किसके साथ रहता है। ये देखो, फलयंजुर बिमन यतखल्लल फलयंजुर बिमन युखालिल, कि खूब गौर करो कि वो किसके साथ रहता है। इसलिए एक आदमी अपने दोस्त के धर्म पर चला जाता है। विचारधारा खाली नहीं बदलता, क्या बदल देता है? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, आदमी खाली विचारधारा नहीं बदलता, क्या बदल देता है? धर्म। अल मरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के धर्म पर चला जाता है। आपने अखबार में पढ़ा होगा फला फला कैसा चला गया, फला फलाने के साथ चला गया, पढ़ा है आपने? वो क्यों चले जाते हैं? दोस्ती में। दोस्ती में या और किसी में? अल्लाह बोलो भाई। तो दोस्ती ऐसी चीज है कि जिनके साथ आदमी रहता है वो ऐसा उसको अंधा बना देता है कि वो वतन को भी छोड़ दे, माँ बाप को भी छोड़ दे, धर्म को भी छोड़ दे।
تو हमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे माहौल में अच्छे लोग हों। कैसे लोग हों बोलो? अच्छे लोगों से हम अच्छे लोगों के जरिए से हम अच्छे पर बाकी रहेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत की चीज है कि हमारे आसपास रहने वाला मजमा अच्छा हो, हमारे माहौल के लोग अच्छे हों। आदमी माहौल से चलता है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के वहां मदीने में माहौल बन गया तो वहां यहूदी रहते थे। कौन रहते थे? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, यहूद। तो हुजूर ने ये तमन्ना जाहिर की कि ये लोग यहां नहीं रहने चाहिए। ये तमन्ना जाहिर की, ये लोग यहां, क्योंकि इनकी वजह से हमारे माहौल गंदे होते हैं, इनकी वजह से हमारा माहौल, इनको निकालो यहां से। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उनको खैबर में निकाल दिया। कहां भेज दिया? खैबर में सबको भेज दिया। और अपनी वफात से पहले तो ये तमन्ना जाहिर की कि ये जजीरतुल अरब में भी नहीं रहने चाहिए। और ये फरमाए अखरुजुल यहूद मिन जजीरतिल अरब, इनको जजीरतुल अरब से भी निकालो, ये यहाँ गंद रहनी नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ रहे तो हमारे लोगों को गंदा करेंगे। इसलिए हमको तो हुक्म है कि घर बनाओ तो कहाँ बनाओगे? सेठ लोगों की कॉलोनी में, मालदारों की कॉलोनी में जी, तो कहाँ बनाओगे? हुक्म यह है कि घर जहां बनाओ वहां बनाओ, पड़ोसी देखकर बनाओ। घर जहां बनाना हो वहां बनाओ। किसको देखकर बनाओ? उतलुबिल जार क़ब्ल दार। कई लोगों, घर से पहले पड़ोसी देखो। घर से क्या पहले क्या देखो कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन पड़ोसी असर करता है। लोगों के साथ का रहना सहना संग असर करता है। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, सुना है नाम आपने? बड़े आदमी है। मौलाना इलियास साहब ये कहते थे कि तरीक़े तालीम मेरा हो, तरीक़े तालीम और तालीम उनकी हो, ऐसी तमन्ना करते थे। उनकी किताबें अजीब व गरीब किताबें हैं। उनके एक बड़े बुजुर्ग खलीफा थे, ख्वाजा अजीजुल हसन साहब मजजूब, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे वो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। हजरत से बैत हो गए। बैत होने के बाद हजरत की मजलिस में आना जाना सारी बातें, ये बता रहा हूं कि असर, साथ में रहना कैसा असर करता है वो बताना है। साथ में रहना, तो कहने लगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उनका एक चपरासी था। चपरासी होता है ना, पियून, वो उसके घर में शादी थी, उसके घर में शादी थी। तो वो शादी थी तो चपरासी ने हजरत को दावत दी कि आप मेरी शादी में आए हैं हमारे वहाँ। तो हजरत ने कबूल कर ली। हजरत अपने घर वालों के साथ गए वहाँ। हजरत ने इसलिए कबूल कर ली, चपरासी है, वो ये समझेगा नहीं जाऊंगा। देखा कितने बड़े आदमी हैं, हम छोटों के घर में तो आए भी नहीं। तो इसकी दिलदारी के लिए, इसकी दिलदारी के लिए हजरत खानदान के साथ चले गए, फैमिली के साथ। शाम को जब शादी से लौटे तो शादी से लौटने के बाद घर वालों को घर में छोड़ा और वो मस्जिद गए। और शाम को नमाज पढ़कर मस्जिद से आए तो देखा चेहरे बीवी का रंग बदला हुआ है, बीवी का रंग, चेहरा बदला हुआ है। तो हजरत ने पूछा खैरियत? तो पूछा तो पहला जवाब बीवी ने जो दिया, बताऊं क्या दिया? क्या दिया? खैरियत पूछे तो पहला जवाब क्या दिया? अल्लाह बोलो तो खरे, सारी सादगी हमारे लिए रह गई है, सारी सादगी। नहीं देखा तुम्हारे चपरासी का घर, नहीं देखा उनके वहां का फलां और फलां और फलां, सारी सादगी हमारे लिए। का मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया कि मेरा सारा किया कराया एक दिन की वहां की सोहबत ने पूरा कर डाला। कि थोड़ी देर की सोहबत, तो ये कोई मामूली चीज नहीं होती कि हमारा सर्कल क्या है, हमारी उठक बैठक किन के साथ है, ये कोई मामूली चीज नहीं। आदमी जिसके साथ उठक बैठक करता है ना, वो इसलिए करता है कि वो जिसके साथ बैठता है उसकी विचारधारा को ये पसंद करता है। अगर उसकी विचारधारा को पसंद ना करता या उससे वो मुत्तफिक ना होता तो उसके साथ बैठता। तो हमारी ये जरूरत की चीज है कि हमारे माहौल में अच्छी विचारधारा के लोग पैदा हो जाएं, अच्छी सोच के, अच्छी फिक्र के, अच्छे जज्बात के। अगर ये है तो हमारे वहां कोई भी गलत आ जाएगा वो अच्छा ही लेकर जाएगा।
हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी के साथ कोई लग जाता था तो उनकी विचारधारा ले लेता था। उनके गुलाम थे गुलाम, वो उनके साथ रहते रहते उलमा बन गए। उनके गुलाम उनके साथ रहते रहते क्या बन गए? उलमा बन गए। गुलाम हैं मगर उनकी सोहबत ने उनको उलमा बना दिया। तो हमारे माहौल में अच्छे लोग पैदा होने चाहिए, अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, अच्छे जज्बात के लोग। ये हमारी, मैं घर में रहता हूं मेरे घर में अच्छे होने चाहिए, मैं मोहल्ले में रहता हूं मेरे मोहल्ले में अच्छे होने चाहिए, मैं मस्जिद में जाऊं मुझे मस्जिद में अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छे लोग मिलने चाहिए। तो एक अच्छे लोगों का होना जरूरी, दूसरा अच्छे माहौल का होना जरूरी। दूसरा किसका होना जरूरी? माहौल की मिसाल मौसम से दी गई। माहौल की मिसाल किससे दी गई? अल्लाह बोलो ने भाई, मैं भी नहीं सोऊंगा, आपको भी इंशाल्लाह नहीं सोने दूंगा। हाँ कोई सोना चाहे तो फिर अलग बात है। माहौल की मिसाल मौसम से दी गई। अभी ठंडी का मौसम है, सबको ठंडी लग रही है नहीं लग रही है? लग रही है। कोई उससे बाकात नहीं रहता कि बादशाह सलामत को नहीं लगेगा, मौलाना साहब को नहीं लगेगा, अमीर साहब को नहीं लगेगा, ऐसा है कि ठंडी किसी को उड़कती नहीं है, माहौल किसी को उड़कता वो सभी को लग जाता है, यूं लगकर चला जाता है। माहौल की मिसाल मौसम से दी गई। जैसे गर्मी आए तो सभी को गर्मी लगती है, हरम शरीफ के इमाम साहब को भी लगेगी, नबी को भी गर्मी लगती है, नहीं लगती नबियों को गर्मी? ठंडी सर्दी सबको लगती है। तो इसकी मिसाल मौसम से दी गई। मौसम जैसे सबको लगता है ऐसे माहौल सबको लग जाता है। माहौल जैसा होगा ऐसा असरात होंगे। एक मोटी मिसाल, मोटा उदाहरण, अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला जमीन बनाई तो सबसे पहला अपना घर बनाया। कौन सा घर? बैतुल्लाह। और उस घर के ऊपर यूं बताया कि ये हिदायत का मरकज है। कौन सा मरकज बोलो? इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदा। कि हमने सबसे पहला अपना घर बनाया, वो हिदायत का मरकज है। वहां सारे नबी आए हैं और सारे नबियों ने वहां हिदायत की फिजा बनाई। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक लंबा ज़माना गुजरा, उस ज़माने में कोई नबी नहीं आए। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के आने से 250 साल पहले, कितने साल पहले, लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। और वो बुत परस्ती बैतुल्लाह में नहीं थी, अपने अपने घरों में थी। फिर वो कोई सही मेहनत करने वाला नहीं था तो वो घरों से निकली बुत परस्ती। कहां से निकली? फिर वो मोहल्ले में आई। कहां आई? फिर वो बढ़ते बढ़ते बैतुल्लाह के अतराफ में आ गई। फिर वो बैतुल्लाह के अतराफ में से कहां घुसी? बैतुल्लाह के अंदर घुस गई। और कितने बूत बैतुल्लाह में आ गए? एक दो आ गए, 360। और लंबा जमाना वो बैतुल्लाह के अंदर रहे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम 40 साल का जमाना नबूवत से पहले का, वो बैतुल्लाह हुजूर वही हैं, बुत सारे मौजूद हैं। फिर 10 साल का नबूवत का जमाना, हुजूर वही हैं, बुत मौजूद है। लंबे जमाने तक अल्लाह ने भी उसको रहने दिया। अल्लाह ने भी उसको, अगर आपकी मस्जिद में या आपके घर में कोई मूर्ति रख जाए तो आप क्या करोगे? कि बैतुल्लाह में था इसलिए मैं भी रहने दूंगा। अल्लाह बोलो डॉक्टर क्या करेगा? बैतुल्लाह में था बहुत जमाना तो नहीं रखोगे? कहना हम नहीं रखेंगे, निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? ना भाई हम इसको नहीं रखेंगे, हमें गैरत आती है, गैरत, इस्लाम की गैरत, हम नहीं रखेंगे। तो अल्लाह ने उसको एक लंबे जमाने तक रखा, हमें और आपको समझाने के लिए कि ऐसा पाकीज़ा जगह, अगर वहां कोई मेहनत ना होगी तो वो भी जरासीम से नहीं बचती है, वो भी जरासीम से नहीं बचती है। तो जब बैतुल्लाह जैसा बैतुल्लाह, उसके अतराफ का माहौल खराब हो जाए तो वो गंदे माहौल से मुतासिर हो सकता है। तो फिर तुम्हारा और आपका घर, हमारा और आपका घर, फिर हमारी और आपकी मस्जिदें, अगर अतराफ का माहौल गंदा हो गया तो गंदे माहौल से बच जाएगी। अभी देखो मोहल्लों में जो गंदगी हो रही है वो मस्जिदों में आना शुरू हो गई। हमारे छोकरे पहले ऐसे उटांग पटांग लिबास पहनकर मस्जिद में नहीं आते थे। आपको याद है? जरा सलीके के लिबास पहनकर मस्जिदों में आते थे। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मस्जिद में एक आदमी की भी फोन की घंटी नहीं बजती थी और कभी बजे तो एकदम हवास उसके उड़ जाते, मेरे फोन बजा एकदम बौखला जाता था। और अब
ایک یہاں بج رہی ہے، ایک یہاں بج رہی ہے، ایک یہاں بج رہی ہے، ایک یہاں بج رہی ہے. اور اب بچے باہر جو کام کرتے ہیں موبائل دیکھنے کا، وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی کرنا شروع کر دیے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ باہر کی گندگی مسجدوں میں آنا شروع ہو گئی. ہونا یہ تھا کہ مسجد میں جو ہو رہا ہے وہ باہر جاتا، مسجد میں جو ہو رہا ہے وہ باہر جاتا. تو ہمارے ماحول کا اثر مسجدوں پر آنا. لوگ حرم میں بیٹھتے ہیں، حرم میں یہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ حج میں تھے، مزدلفہ کی رات تھی، تو نوجوان بچے اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے، تاش کھیل رہے تھے. مزدلفہ میں تاش کھیل رہے ہیں کہ وہ اپنا ماحول یہاں لے کر آئے مزدلفہ کی رات میں. ہاں، تو ہم اس پر سوچیں. اور جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب جائے گا نا، تو ایسے ظلمتیں بڑھے گی. کیا بڑھے گی؟ ظلمتیں. نورانیت کم ہوگی، تبھی تو قیامت آئے گی، ورنہ کیسے قیامت آئے گی؟ روزانہ اندھیرے بڑھیں گے، گندگیاں بڑھے گی، اور اتنی گندگی پھیلے گی، اتنی گندگی پھیلنے والی ہے کہ آدمی کے گھر میں، آدمی کی گھر کی عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ گھر میں برائیاں ہوگی. کہاں برائیاں ہوگی؟ تلد الامۃ ربتہا، کہ گھر کی چار دیواریوں میں برائیاں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا ایسی برائیاں ہوگی. عورتوں میں ایسی کشش پیدا ہو جائے گی کہ وہ کھینچے گی مردوں کو، یوں کھینچے گی. رب کاسیات عاریات مائلات موملات، وہ یوں کھینچے گی. بہن سگے بھائی کو کھینچ لے گی، بیٹی سگے باپ کو کھینچ لے گی. یہ چیزیں پیدا ہوگی. ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں مدرسوں کے، ایک مدرسے میں ہم گئے تھے سفر میں، تو وہاں مفتی صاحب نے فتویٰ دکھایا کہ ایک استفتاء آیا ہے کہ باپ نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گناہ میں ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے. ایک جگہ پر ایک لڑکے نے مسئلہ پوچھا، تبلیغ میں لگا وہ لڑکا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے. مجھے تبلیغ میں گیا تھا، مجھے احساس ہوا، میں توبہ کر رہا ہوں. یہ تو کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا. جہاں جوائنٹ فیملی آئے، دو بھائی ساتھ میں، اس کو فخر سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو جوائنٹ فیملی ہے. حضور نے فرمایا دیور موت ہے، موت. دیور، گھر کا باہر کا آدمی آئے گا نا، پتہ چل جائے گا کوئی آیا ہے. یہ گھر کا آدمی ہی گھر میں سوراخ کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ فخر کی چیز نہیں ہے. ہم تو جوائنٹ فیملی ہے، گھر میں سوراخ ہو جاتے ہیں، سوراخ. جہاں ایک مرد اور عورت جمع ہوتی ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. جہاں ایک مرد اور عورت ہوتی ہے وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے. اور آج مرد اور عورتوں کا اختلاط آسان ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے. تو ابوبکر کون ہے؟ صدیق ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑے درجے کا آدمی ابوبکر ہے. ان کی بیٹی کون ہے؟ عائشہ صدیقہ. عائشہ، اللہ بولو تو کھڑے بھائی. تو باپ اپنی بیٹی سے تنہائی میں گھر میں باتیں کر رہے تھے. وہ حضور کی گھر والی ہے اور ابوبکر کی بیٹی، وہ صدیقہ ہے. اور یہ کون ہے؟ دونوں اکیلے میں باتیں کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور دونوں کو یوں دیکھا کہ اچھا تم دونوں اکیلے میں باتیں کر رہے ہو، کاش کہ تمہارے بیچ میں کوئی تیسرا ہوتا. کوئی شک کر سکتا ہے، کوئی گمان کر سکتا ہے صدیق اور صدیقہ؟ اللہ بولو تو کھڑے. لیکن یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ شیطان کام کر جائے. تو یہ جراثیم پھیلیں گے، اتنے پھیلیں گے کہ بے حیائی کا عمل راستے پر ہوگا. کہاں ہوگا؟ اور کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا بھائی تم مت کر. یوں کہیں گے بھائی ذرا کونے میں چلا جا. ایسا ہوگا. اتنا بھی کوئی روکنے والا نہیں. یہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک سب ہوگا. ہماری یہ جو محنت ہے، ہماری یہ محنت کہ وہ تو ساری باتیں پیش آئے گی جو ہونی ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی محنت کی ہوگی پھر اللہ بچا لے گا ان کو. یہ ہمارے بچنے کی اور ہمارے سنبھلنے کے اسباب ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں لوگوں کی ہدایت پر آنے کے. ہماری محنت پر اور لوگوں کی ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہماری محنت پر لوگوں کو ہدایت ملے اس کا کوئی وعدہ نہیں. ہاں جو محنت کرتا ہے اس کو ہدایت کا وعدہ ہے. جو محنت کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی ساری محنتوں میں اپنی ہدایت کا نیت کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ہماری نیت پر ہدایت دینے کا وعدہ کیا.
اب میں محنت میں اپنی نیت نہ کروں تو جس کی ہدایت کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، اور جس کا وعدہ نہیں اس کی نیت ہے، تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو بنانا ہے. میں کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے ماحول کو بنا دے. تو ہماری یہ جو محنت ہے جس کا یہاں مذاکرہ ہوتا ہے، میں نے شروع میں آپ سے کہا، یہ آپ کو کوئی سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں. ہم سب انسان ہیں اور ہم کمزور ہیں، غیر محسوس طریقے پر ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے. یہ مذاکرہ یاد دہانی کے لیے، کس کے لیے بولو؟ یاد دلانے کے لیے کہ ہمارے وہاں اللہ نے ایک ہمیں بڑی نعمت دی ہے، تو وہ ایک ہوتی رہے اور اچھی شکل سے ہوتی رہے، کیونکہ ہوتے رہنا بھی ضروری اور اچھی شکل سے ہونا بھی ضروری. کیونکہ جب ہوگی ہی نہیں تو اس کا نفع کیسے ہوگا؟ اور ہو تو رہی ہے مگر اچھی شکل سے نہیں ہو رہی تو بھی اس کی طاقت ٹوٹ جائے گی. اچھے ہونے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اچھے ہو. کہ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمیت بھی ٹھیک ہو، اس کی کیفیت بھی ٹھیک ہو، اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہو، کوانٹیٹی بھی ٹھیک ہو. کوالٹی بھی ٹھیک ہو اور اللہ بولو نا بھائی، اس کی کمیت بھی ٹھیک ہو، کوانٹیٹی بھی ٹھیک ہو. فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے تو کوئی 1:45 پڑھے تو چلے گا، اور کوئی 2:15 کر دے تو 2 ہی پڑھنی ہے تو 2. اس کی ایک کوانٹیٹی ہوئی، کمیت. اور خوشو خضو سے پڑھنی ہے تو وہ بھی ہونا ضروری ہے. 2 پڑھی اور خوشو خضو نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کب منہ پر ماری جائے گی. کہ 2 ہو اور وہ خوشو خضو کے ساتھ ہو. ایسے ہماری یہ محنت جیسے کرنے کو کہیں ایسی ہو اور جتنی کرنے کو کہیں اتنی ہو تو پھر یہ نفع ظاہر کرتی ہے. کیا نفع ظاہر کرے گی؟ کیا یہ نبیوں کی محنت جو ہے نا اندر کی یقین کو بناتی ہے، تو ہم سب کے یقینوں کو بنائے گی. اور یقین بنے گا تو اعمال بنیں گے، تو اعمال کو بنائے گی. اس سے آدمی بنیں گے تو لوگ اچھے بنیں گے. اس سے ماحول بنے گا تو ماحول خود بخود بنے گا. تو یہ ہماری کتنی ضرورت کی چیز ہے، اس کو سوچیں. ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ہمارا زیادہ زمانہ اللہ کے راستے میں نہیں گزرتا. عام طور سے آدمی اللہ کے راستے میں 4 مہینے جائے گا، تو 4 مہینے ہر سال جانے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. باقی اکثر مجمع تو چلا ہی جاتا ہے. اس کے 360 دن میں سے 40 دن اللہ کے راستے میں گزرے، 320 دن گھر پر گزرے ہیں. اب ایک آدمی 40 دن میں چارج ہو کر آیا، خوب اچھے سے فکر لے کر آیا، جذبات لے کر آیا، لیکن 320 دن اس کو اپنے مقام پر رہنے ہیں. اب وہ آدمی آیا اپنے گھر میں. اب گھر میں آنے کے بعد اس کو اپنے گھر میں ماحول ملنا چاہیے، مسجد میں ملنا چاہیے، محلے میں ملنا چاہیے. یا وہ آدمی مسجد میں گیا، اس کے مسجد میں کوئی ایمان عمل کا ماحول ہی نہیں ہے، تو یہ جو چارج ہوا ہے وہ کتنے دن تک کر لے گا؟ وہ آہستہ آہستہ دھیمی گتی. روز موبائل چارج ڈسچارج ہو جاتا ہے، یہ ڈسچارج ہوگا. اس کو چارج کرنے والا پوائنٹ چاہیے. یہ مسجد اور جماعت میں روزانہ کا بیٹھنا اس کو چارج کرتا ہے. روز اس کی فکروں کو بھرتا ہے. کیونکہ فکر جو ہے نا، فکر وہ آدمی کو چلاتی ہے. کون سی چیز چلاتی ہے؟ دیکھو آپ لوگوں نے طے کیا کہ ابھی یہاں صبح آنا ہے تو آپ کو فکر آپ کی لائی. آپ گھروں میں تھے، آپ کے فکر میں تھا اجتماع میں آنا ہے تو آپ کے فکر اجتماع میں. بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس فکر نہیں تھی، تم کو اجتماع میں وہ نہیں آئے. آپ کو آپ کی فکر لائی. تو ہمیشہ ہر کام آدمی اپنی فکر سے کرتا ہے. اب دیکھنا ہے اس کی فکر کون سی ہے. دنیا میں اچھی فکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، غلط فکر والے بھی ہوتے ہیں. اچھے والے بھی ہوتے ہیں اور غلط والے بھی ہوتے ہیں. میری فکر اچھی رہے اور میری فکر جاگتی رہے کہ اس کے لیے میری روز مجھے فکر کا ڈوز ملنا چاہیے. ہماری مسجد کی جماعت کیا ہے کہ روز فکر کا ڈوز لینے کا پوائنٹ ہے کہ روز فکریں تازہ کرے گی. آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن چھوڑ کر دیکھ لو کیسا حال ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی چھوٹے ہو گئے تبلیغ سے. کیسا لگتا ہے؟ تبلیغ سے چھوٹے ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ 2-4 دن اگر بیٹھے نہیں مسجد اور جماعت میں تو مسجد میں ہمیں ماحول ملے گا چارج. پھر آدمی گھر میں رہتا ہے تو اس کو پھر گھر کے ماحول بتایا. گھر میں وہ اعمال کریں جس سے اس کو گھر میں ماحول ملے، اس کو بھی ملے، اس کے گھر کے ایک فرد کو ملے. ایک آدمی چلا لگا کر آیا، اس کے گھر میں ماحول اگر نہیں ہے تو گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، 8-10 آدمیوں کا پریوار ہے. اب ایک آدمی ان کے بیچ میں آیا، ایک چارج ہو کر آیا ہے، باقی 9 ڈسچارج ہے.
अब एक आदमी इन 9 के बीच में कितनी टक्कर लेगा, कब तक टक्कर लेगा? ये 9 गालिब होंगे या एक गालिब होगा? अल्लाह बोलो भाई, 9 गालिब आ जाएंगे। तो पहले अपनी फिक्र की बात की, फिर घर में माहौल बनाओ, तो घर के अमाल हमको दिए ताकि घर में माहौल बनने से हमें ताकत मिले, हम जो चीज पर है उस पर ताकत मिले, वरना आदमी को ताकत नहीं मिलती। तीसरा आदमी मोहल्ले में रहता है तो उसका घर में तो माहौल मिला, घर के बाहर नहीं मिला। अब घर के बाहर जाएंगे, 24 घंटे थोड़ी घर में रहेंगे, तो मोहल्ले के जो असरात होंगे वो हम पर पड़ेंगे। भाई बैतुल्लाह पर मोहल्ले की तो असर पड़ा था, तो फिर मोहल्ले में माहौल नहीं होगा तो जैसा माहौल होगा घर की फिक्रें वहां उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सबको ये जितने अमाल मिले, हमारे सईद साहब भोपाली ये कहते थे, इतने ताकतवर ये सारे अमाल हैं कि अपनी इजाजत से लेकर दुनिया के कोने तक की फिजा को बनाने के लिए ये एक चैन बनी हुई है। अपनी इजाजत से लेकर दुनिया के कोने तक जाने के लिए एक चैन बनी हुई है। अगर उसको अच्छे से किया जाए ना तो यहां से लेकर वहां तक पूरा निजाम सही हो जाएगा। सबसे पहला आदमी अपनी इजाजत से मस्जिद में संभलता है, उसके बाद उसको घर में जाना है तो घर का माहौल से वो घर में संभलेगा, फिर अपने मोहल्ले में तो अपने मोहल्ले की मेहनत से मोहल्ले की फिजा अच्छी बनी होगी तो वहां संभल जाएगा, फिर अपने अतराफ मोहल्ले का अतराफ का दूसरा गश्त है उसके लिए, फिर हमारा जिले के देहात का उसके लिए हमारे 3 दिन है, फिर हमारा सुबह और पूरी दुनिया। तो एक चैन बनी हुई है, जबरदस्त चैन है ये। और ये ऐसा नहीं समझने का चाहिए कि तबलीग वाला ने बता दिया। मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान है रायवंड का, हजरत ने उसमें फरमाया, क्या तुम ऐसा समझते हो कि जो बातें हमने आपको बताई है वो कोई ख्वाब आया था और सुबह में आंख खोली और यूं तुमको बता दिया? यूं कहते थे इसके लिए मनो आंसू बहाए हैं। क्या बनाए बोलो? मनो आंसू बहे हैं, उसको अल्लाह से रो धोकर कबूल करवाया है। तो इसको हमें करना है, हम इसको 5 काम न समझें। ये हमारे माहौल को मजबूती लाने, लोग कहते हैं मौलवी साहब वो 4 महीने में गया था, वो चिल्ले में गया था, अब तो नमाज भी नहीं पढ़ता, क्या फायदा हुआ? लोग ऐसा कहते हैं, बाप भी ऐसा कहता है, भाई भी ऐसा कहते हैं कि इसको 4 महीने भेजा था, क्या फायदा हुआ? तो बात यह है कि उसको तो बहुत फायदा हुआ था। जिस दिन से वो घर से निकला तो एक नमाज नहीं पढ़ता था। अल्लाह के रास्ते में जाने ने उसको 4 महीने लगाने ने नमाजी बना दिया, तहज्जुद गुजार बना दिया, 15 आदमियों की वो खिदमत करता था। तो ये सारे अमाल लेकर आए थे, लेकिन जिस घर में आया उस घर में उसको माहौल नहीं मिला, उस मोहल्ले में नहीं मिला, उस मस्जिद में नहीं मिला। वहां की बेदीनी ने इसको फिर दोबारा धक्का दे दिया, वरना वहां से तो अच्छा आया था। भाई गाड़ी से कंपनी नहीं निकले, लेकिन हाईवे टूटा हुआ हो, गड्ढे पड़े हुए हो, कांटे पड़े हुए हो, तो गाड़ी चलेगी? घर का हाईवे टूटा हुआ, मोहल्ले का हाईवे टूटा हुआ, वो आदमी कब तक टक्कर लेगा? अरे भाई कब तक टक्कर लेगा? वो भी तो इंसान है। तो थोड़े दिनों में मस्जिद का माहौल नहीं मिला, घर का माहौल नहीं मिला, तो वो उसने उसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा माहौल बना दिया मदीने का कि कोई छुपना भी चाहे तो छुप ना सके। मुनाफिक को नमाज नहीं पढ़नी होती थी, वो छुप नहीं सकते थे इसलिए पढ़ने आते थे। मुनाफिक को पढ़नी, मगर वो छुप नहीं सकते थे इसलिए मजबूरी में नमाज पढ़ने आते थे, वरना उनको थोड़ी पढ़नी होती थी। ऐसा माहौल बन जाए कि गंदी चीज हमारे दरमियान में रह ही ना सके, गंदे को हमारे वहां जगह ही ना मिले, ऐसे बॉर्डर बांध दो कि ये मकामी अमाल की शक्ल ऐसी बॉर्डर हैं। इसलिए ये जो फजर की मजलिस होती है ना, वो आपको कोई समझने समझाने के लिए नहीं, हम सब इंसान हैं, करते करते हम कमजोरी आ जाती है। इन मुदाकरों के जरिए से ये हमारी कमजोरियां कैसे दूर हो जाएं और इसको हम अपनी जरूरत समझकर करने वाले बने, और ऐसा करने वाले बने जैसे उसको करने को हजरत कहते हैं, ताकि उसका नफा हमें मिले, हमारे पूरे मोहल्लों को मिले, और हम भी महफूज हो जाएं, हमारी नस्लें महफूज हो जाएं। और वो सारे फितने आने वाले हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सारे फितने, हुजूर ने क्या फरमाया बताऊं? फितनों के मुतालिक क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में वो सारे फितने पैदा होंगे जो बनी इसराइल में हुए हैं, और ये फरमाया कि अगर उनमें 72 फिरके हुए हैं तो मेरी उम्मत के 73 होंगे, और ये फरमाया कि अगर उसमें किसी ने अपनी माँ के साथ बुराई की है तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो माँ से बुराई करेंगे। और ये मिसाल दी हज़्वन नाल बिन नाल, दो चप्पल साथ साथ होते हैं ना, जूते के तस्मे, का ऐसे ये साथ साथ चलेंगे। जो बनी इसराइल में हुआ वो सब होगा, तो वो हमें ना लगे, हम बचे हुए रहे, हम जितनों के बचा सकते हैं, वरना वो सब होने वाला है। इसलिए इसको खाली बरकत की चीज ना समझें कि 5 काम बरकत की चीज है। ये हमारे माहौल को बनाएगा, हमें साथ चलेगा, हमें क्या करेगा बोलो?
हमेशा चलेगा, हमारे माहौल को, हमारे बच्चों को। इसलिए इसी जहन से हमें यहाँ से ताज़ा दम होकर जाना है। यहाँ खाली बैठे नहीं रहना, खाली इसको सरसरी नहीं सुनना, ताज़ा होकर जाना है। ऐसा ताज़ा होकर जाना है आइंदा साल इस एक ताज़ा दम होकर अपने आप को फिर एक धक्का देना है कि जो गंदगी घर घुसी हो वो ख़त्म हो जाए, जो कमज़ोरियाँ आई हो उसको धक्का लग जाए, और एक ज़ोरदार फिर अल्लाह पाक हमें इस पर डाल दें। तो इस नियत से सब आज नियत करते हो कि इंशाल्लाह ताज़ा दम होकर जाएंगे और सारी कमज़ोरियों को दूर कर देंगे। भाई सब नियत, कौन कौन नियत करता है? अच्छा, कौन कौन ध्यान से सुनेगा? अच्छा, कौन सोते सोते सुनेगा? कौन सोते सोते सुनेगा? अच्छा, कौन इसको अपनी ज़रूरत कमज़ोर कि ठीक है ये तो बातें हो रही है, बीच में से मैं उठकर चला जाऊंगा, कौन कौन चले जाएंगे? अच्छा, कौन कौन उठकर आखिर तक नहीं जाएगा? आखिर तक कौन कौन बैठेगा? सब बैठोगे? आप तो एक दिन बैठते हो, 2 दिन, ये जो बैठे हैं ना आपके सामने, हम रोज बैठते हैं। देखा था कल माँ इस्माइल साहब बैठे थे, हम रोज बैठते हैं। और आप लोग खाली एक दिन, हम रोज बैठते हैं। आप कहते हैं पेशाब, पेशाब हमें भी लगती है, पानी हमें भी लगता है, मुझे कब से पानी पीना है। तो हम रोज बैठते हैं, आपको एक दिन कहते हैं और आप कहते हैं पेशाब लग गया, यूं करके चले जाते हैं। आप भी ऐसा करोगे, और जिले वाले तो ऐसा करते हुए आए हैं, आप तो ऐसा नहीं करोगे ना। ये अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे। हाँ भाई डॉक्टर आ जाओ ज़रा, पहले बैठे हो तो जी डॉक्टर साहब को माइक दो। भाई आपको बैठना हो तो आ जाओ, जाना हो तो जाओ, खड़े ना रहो, आना हो तो आ जाओ, आने में नफा है, लेकिन इस नियत से आओ कि आखिर तक बैठना है। भाई ये कहाँ जा रहा है? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मुझे भी पेशाब लग गया, मुझे भी ले जाओ फिर अपने साथ। देखो कोई भी जाएगा तो उसको प्यार मोहब्बत से रोकना है। मैं तो भरपूर कोशिश करूंगा कि उसको न जाने दूं, क्योंकि शैतान उसको ले जा रहा है। तो शैतान तो दुश्मन है, उसके साथ थोड़ी जाने देंगे। अपने साथी को हम बचाएंगे, आप भी बचा लेना, पकड़ लेना उसके पैर, ठीक है इंशाल्लाह। चलो जी। हाँ भाई, आपके मस्जिद में मशवरा कब होता है? कितने साथी होते हैं? मशवरे में क्या करते हो? कितने साथी होते हैं मस्जिद में? मशवरा फजर बाद होता है, अभी करीबन 25 साथी होते हैं। 25 साथी। आपके मस्जिद में वक्त लगाए साथी कितने हैं? अगले साथी 4 महीने वाले 25 साथी है, और चिल्ले वाले 110 से ज़्यादा चिल्ले वाले 110। ये 25 साथी कितने सालों से आपके वहाँ हैं? कितने मदद से है? कितने 4 महीने से करीबन। पिछले 4 महीने। उससे पहले कितने थे? इसके पहले 20-22 थे, इसके पहले 16-18 थे, इसके पहले 10-12 थे। ये 25 पिछले 4 महीने में कैसे बढ़ गए एकदम? कुछ साथी वक्त लगा के आते हैं, फिर इनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़हन बनता है, उनको साथ में ले लेते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनको काम देते हैं। आपके मस्जिद की तरफ में मकान कितने हैं? 140 मकान है। 140 मकान। उन 140 मकानों में आपने 25 साथियों के ज़िम्मे कैसे काम तकसीम किया है? उनकी जोड़ी बनाई, 3 जोड़ी बनाई हुई है, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी। एक जोड़ी में कितने हैं? एक जोड़ी में 7-8 साथी है। एक जोड़ी में 7-8 साथी। फिर इनको काम देते हैं अलग अलग, उसमें 4 जोड़ी में से 2 हल्के छोटे आपने हल्के। उनके ज़िम्मे मकान तकसीम कर दिए हैं या रोज का काम देते हैं? नहीं, काम मकान तकसीम किए हुए हैं। मकान तकसीम किया हुआ है। पकाया मकान। एक जोड़ी के ज़िम्मे कितने मकान आए हैं? करीबन 25 मकान है, किसी में 30 मकान है। इलाका बड़ा होता है, सोसाइटी होती है तो। अच्छी बात। ये लोग 8 साथियों की जमात ये 25 मकानों को कितने दिनों में कवर कर लेते हैं? पूरे मकान तो कभी कवर नहीं होते जी। पूरे मकान तो कभी कवर नहीं होते। क्यों? वो अक्सर वो साथी फजरबाद वज़ीशाबाद का वक्त पकड़ के चलते हैं, इसके लिए सारे मुतलाक़त तो होती नहीं कभी। नहीं, आपकी रोजाना एक जोड़ी की कितनी जोड़ियों की कर्जदारी रोजाना आती है? सबकी कर्जदारी रोजाना आती है, 4 जमात 5 जमात को भी बनती है। ठीक है, रोजाना 4 जमातों की कर्जदारी आए। एक के ज़िम्मे आपने 25 मकान किए हैं तो या 30 किए हैं, वो रोज कर्जदारी सुनाते हैं। तो अगर एक जोड़ी रोजाना एक कर्जदारी सुनाए तो 25 दिन में कितनी हो जाएगी? अल्लाह बोलो न भाई, सामने बैठे हो तो बोलना पड़ेगा, खामोश नहीं चलेगा भाई। रोज एक मकान करें तो 25 दिन में 25, 30 दिन में फिर क्यों नहीं होती आपकी? अक्सर साथी वज़ीशाबाद का वक्त है। और भाई हमने भी आपको ये नहीं पूछा सुबह में होता है या शाम को, हमने तो इतना पूछा रोज कर्जदारी आती है ना, वो सुबह करें, दोपहर करें, रात करें, आधी रात करें, जब भी करें, ठीक है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर रोजाना उनकी कर्जदारी आ रही है तो अगर एक जोड़ी ने एक घर की मुलाकात की तो 25 दिन में कितनी हो जाएगी और 30 दिन में? तो बज़ाहिर जो आप गिनती गिना रहे हो इस हिसाब से तो पूरा हो जाना चाहिए।
आपका क्यों पूरा नहीं होता? वही बताना था, अक्सर ईशा बहुत मुलाकात में आते, पहला गज दूसरा गज तो मुलाकात नहीं होती, और फिर कभी जाते तो मुलाकात नहीं होती, तो भी कारगुजारी होता है, जहाँ गए थे मुलाकात नहीं हुई, ऐसी कारगुजारी आती है। चले कोई बात नहीं। तो हफ्ते में 3-4 दिन आपके अमल के हैं, इसलिए मुलाकातें आधे हफ्ते ही होती है, 3-4 दिन मुलाकात होती है, 3-4 दिन नहीं होती, यही हुआ। तो चलो 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में तो पूरा हो जाना चाहिए भाई, 2 महीने में पूरा होना चाहिए, 3 महीने में तो होना चाहिए। आपके वहाँ कितने महीने में पूरा होता है? नहीं, पूरा नहीं होता, वही बात है, क्योंकि ईशाबाद इसका मतलब यह है कि आप कैफा मुत्तफक मुलाकात करते हैं, एक एक को निशाना बनाकर नहीं हो रहा है ना? चलें ठीक है। आप हजरत जितना करते हैं वो घरों में बैठ कर करते हैं या कहीं भी कर लेते हैं? नहीं, पहले से तो काबू में आया है, पूरा तो 100% काबू में नहीं आया, 25% करीबन काबू में आया, घर में बैठ कर बात करना। मतलब दूसरे जो 75% काबू में नहीं आया, क्या तकलीफ पड़ती है आपको? वो साथी खुद ही बाहर कर लेते हैं बात, या घर वालों से आप कहते हैं भाई हम आपके घर में बैठ कर बात करना चाहते हैं, और वो आपको कहते हैं नहीं भाई घर में नहीं बाहर करो, या खुद हमारे साथी घर में बैठने की बात नहीं करते? नहीं, वही साथी आमदन नहीं होते, एक जोड़ी ऐसी तरीके करती पाई है, मतलब साथी ही बात नहीं करते घर में बैठने की, कमजोरी हमारी है। अच्छा, आपको क्या अंदाजा हुआ जहाँ जहाँ आप कहते हो हम घर में बैठकर बात करना चाहते हैं, वो मौका देते हैं घर में बैठकर बात? बिल्कुल, अक्सर साथी मौका देते हैं, अक्सर साथी मौका देते हैं। तो आपके साथी क्यों फिर इसको हल्का समझते हैं? वही साथी, सबका ज़हन नहीं होता, यहाँ भी सब साथी आते नहीं है, ज़हन हिदायत की बातें सुनते नहीं है, बरकत से ताल्लुक नहीं होता, तो अच्छा, तो यहाँ की बातें लेकर नहीं जाते? बातें नहीं लेगा, आते नहीं, तो इसलिए बातें लेके भी जाना नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर जाते हो, आप नहीं बताते हो? ये बार बार तरकीब देते हैं, मुशावरे में बार बार तरकीब देते हैं, कभी चला ठीक है। इस मस्जिद में कोई है कि हमारे वहाँ 100% हम घर में बैठकर बात करते हैं, ऐसी कोई मस्जिद? कोई नहीं है, अच्छी बात है। आप मशवरे में मुलाकातों के निज़ाम के अलावा बीमार की आदत है, कोई अल्लाह के रास्ते में गया हो, उनके घर की खबर गिरी है, जमात आई हो, नुसरत है, कोई इंतकाल हो गया हो, ताज़ियत है, ये सब भी सोचते हो नहीं सोचते? ये सारे बातें सोचते हैं। अच्छी बात, बहुत। कितनी देर मशवरा होता है? कभी 7-8 मिनट, कभी 10-12 मिनट। अच्छी बात। मशवरे के बाद हर मोहल्ले की जमात बैठती है अलग अलग? नहीं, वो भी काबू में नहीं आता, कुछ एक मतलब काबू में ना आने की वजह क्या होती है? इस आते अक्सर फजर पर मशवरा होता है, तो फजर पर जल्दी चले जाते हैं, 1-2 जोड़ी साथी बैठते हैं, जो फजर मुलाकात में जाती है वो बैठ के, बाकी साथी चले जाते हैं। अच्छी बात लाई भाई। आप हजरात ने बातें सुनी इनकी, माशाल्लाह इनकी मस्जिद में 25 का अमला है, लेकिन देखने के एतबार से अभी एक बहुत बड़ा अमला अभी तक बैठने वाला नहीं बना। इन्होंने सुना है 25 साथी तो 4 महीने वाले, और चिल्ले वाले 100 ने 110, 135 का मजमा वक्त लगाया हुआ। मैं अभी 3 दिन का नहीं पूछा, अक्सर मस्जिदों में हमारा यही हाल है, 15, 20, 25, 30, ऐसा ही है ना हाल? अरे बोलो भाई, अगर हमारा वक्त लगाया हुआ मजमा ही अभी हमारे साथ नहीं बैठेगा तो मोहल्ले के उमूमी मजमे का क्या हाल बनेगा? हमें हमारे मोहल्ले में अगर कोई बात चलानी है तो सबसे पहले तो मोहल्ले के लोगों को हमें अपना हम फिक्र बनाना पड़ेगा। जब तक आदमी एक फिक्र नहीं होता, साथ सहकार नहीं मिलता। साथ सहकार, और इतना बड़ा मजमा अगर हमारे मोहल्ले का हमारी फिक्रों में हमसे छूटा हुआ है, तो फिर हम जो चीज चाहते हैं उनका साथ सहकार कैसे मिलेगा हमको? हमारी 2 चीजें हैं हर साथी को जोड़ने के लिए। एक कि हमें अपने मोहल्ले में एक अच्छा माहौल बनाना है, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं। अगर मोहल्ले के सारे लोग मस्जिद की फिक्रों से नहीं जुड़ेंगे तो उनकी मस्जिद वाली फिक्रें नहीं बनेगी, और नहीं बनी तो वो हमें इस फिक्रों में साथ नहीं देंगे, तो जो चीज हम चलाना चाहते हैं वो टूट जाएगी। दूसरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने। तो हम सब के लिए ये चीज पसंद करते हैं। हमारी दहश होनी चाहिए कि हमको अपने सारे साथियों को मशवरे में बिठाना है। आपकी मस्जिद में हर महीने में 3 दिन जमातें कितनी जाती है? अब 2 जमातें हर महीने 3 दिन की जाती है। अब 15, 20, 30 आदमी वक्त लगाते होंगे हर महीने 3 दिन में। हमारे जो जमातों के, मैं कह रहा हूं तदबीर में मैं कह रहा हूं जो जमातों में जिनको हम लेकर जाए ना, 3 दिन में हम इनको भरें, बात ना करें मकामी काम की सारी बात। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब एक जुमला फरमाते थे, भाई इनको भरो, तो हमें भरना है। इतना इसको समझाएं, इतना बोले,
موقع بموقع کہ وہ بچے کو ایک احساس یہ ہو جائے کہ مجھے جو بات کہی گئی ہے وہ میرے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں ہوئی تو میرا بہت بڑا نقصان, اس کو اپنا نقصان کا احساس ہو جائے, یہ احساس اس کو چلائے گا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ایک تو ہم اپنے ساتھ آنے والوں کو جماعتوں میں بھریں, پھر اس کے بعد ان کو وصولی کی فکر کریں. وصولی کی فکر کا مطلب میرے ساتھ 15 آدمی 3 دن جا کر آئے, میں نے 3 دن میں جو بھرنا تھا وہ بھرا. اب 3 دن کے بعد میں نے دیکھا اس کو میرے ساتھ مسجد میں ہے, اس کے بعد بھی میں اس کو وصول نہ کروں, تو میرے تقاضا یہ ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات, بھائی اسماعیل اپنوں نے 3 دن میں نیت کی تھی مشورے میں بیٹھیں گے, دیکھو مشورے کا عمل, آگے بڑھ جاؤ. اگر امیر صاحب اس طرح سے تھوڑا سا یاد دلا دیں تو جو اپنے ساتھ مسجد میں ہوں گے تو 2-4 آدمیوں کو بیٹھے بیٹھے یاد دلا دیا تو 2-4 بڑھ جائیں گے, نہیں بڑھ جائیں گے؟ دوسری بات کہ اگر مان لو کہ کچھ لوگ مشورے میں انہوں نے دیکھے کہ ہمارے ساتھ 3 دن میں سے 6 بیٹھے ہیں, 6 نہیں بیٹھے, تو دن بھر میں کبھی بھی وہ 6 سے ملاقات ہوئی, ابراہیم خیریت, طبیعت ٹھیک ہے؟ بھائی ابراہیم آج فجر میں آپ نظر نہیں آئے مشورے میں. ہاں میرے صاحب وہ تھوڑا سا دیر ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں بیٹا, کل سے بیٹھ جانا. اب انہوں نے فوراً یاد دلایا, اسحاق آپ نظر نہیں آئے تھے, ہاں میرے صاحب وہ ذرا سا جلدی تھی اس لیے میں نکل گیا, کوئی بات نہیں بیٹا کل سے ہو جانا. جو باقی 6 نہیں بیٹھے تھے, اگر امیر صاحب تھوڑا سا 1 دن 2 دن 4 دن پیچھے لگے رہے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے, مجمع بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ہماری یہ ضرورت کی چیز, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم بڑھانے کی کوئی محنت ہی نہ کریں اور ہم سوچیں کہ بڑھ جائیں تو بڑھ جائے گا. دوسری بات, بڑھانے کے لیے ہم روزانہ کی جو ملاقاتوں میں جاتے ہیں, روزانہ کی ملاقاتوں میں, ان ملاقاتوں میں ہم جیسے سارے اعمال کی بات کرتے ہیں ایسے مقامی محنت کی پوری جم کر بات کریں, اس میں مشورے کی بھی بات کریں. اب جو لوگ مشورے کے ارادے کریں اس کو ذہن میں لے لو, انہوں نے نیت کی تھی, اب مسجد میں نظر آئے ماشاءاللہ, تو فوراً سلام پھیرنے کے بعد ہم کو نظر آئے, خیریت بھائی خیریت, ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہوئی, کل ہم آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ مشورے میں بیٹھوں گا, حاجی صاحب ابھی مشورہ ہو رہا ہے. اب 4 جماعتیں ان کی محنت میں جاتی ہے, چاروں جماعت ایک ایک کو اس طرح یاد دلا دے, جس کو ملاقات کیا اس کو مقامی کام کی بات کی, اور اس کے آخر میں حاجی صاحب آپ نے کل نیت کی تھی نا, ماشاءاللہ دیکھو مشورہ ہو رہا ہے, تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. تو سچ بتاؤ مجمع بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اللہ بولن بھائی, کوئی مسجد والے ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مجمع کیسے بڑھے گا؟ ہمیں ہر ایک کو مسجد والا بنانا ہے, مسجد کی فکر والا بنانا ہے. اب بڑھاؤ گے, کون سے مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ ایسی ہی محنت کریں گے؟ آئندہ 25 کی کاروباری تو نہیں سناؤ گے, 100% کی نیت کرو. کتنی بولو, سب نیت کرتے ہو؟ دوسری بات میں نے بھائی سے پوچھا 2.5 گھنٹے کی نسبت سے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے, یہ بہت اچھا ہے. ہماری گزارش ہے اور ساری مسجدوں والوں سے کوشش کرو گا ہمارا مشورہ بھی فجر بعد ہی ہو. فجر بعد مشورے میں سب لوگ خالی الذہن ہیں, فارغ ذہن کے ہوتے ہیں, یکسوئی سے آسانی سے مشورہ ہوتا ہے. اور نمازوں میں کوئی بھاگتے دوڑتے دکان سے, کھیت سے, فلاں سے آتے ہیں, وہ یکسوئی بھی نہیں ہو پاتی. تو اس لیے کوشش کرو فجر میں مشورہ ہو. تیسری بات میں نے بھائی سے پوچھی کہ مشورے کے بعد ہر محلے کی جماعت الگ الگ بیٹھتی ہے, تو بھائی نے کہا کہ وہ چیز قابو میں نہیں آئی. اس میں قابو میں کیا لانے کی چیز ہے؟ 2 منٹ ہمیں بیٹھنا ہے, 3 منٹ بس. ہمارا مشورہ لمبا نہ کریں, مختصر کریں تاکہ سب لوگ شریک ہو سکیں. اور مشورہ پورا ہو گیا, اس میں مشورے میں ایسے کرداری پوچھے, بھائی جماعت نمبر 1, جماعت نمبر 2, جماعت نمبر 3, جماعت نمبر 4. جماعت نمبر 1 میں 8 آدمی ہیں, مثلا انہوں نے 2 کی جوڑیاں بنا کر 4 جماعتیں بنا دی, اندر پیٹا جماعت ہے. تو جماعت نمبر 1 کی 1, جماعت نمبر 1, جماعت نمبر 2, جماعت نمبر 3, چاروں نے کرداری سنا دی. تو آسانی کے ساتھ 10 منٹ میں 5 منٹ میں سب کی مشورہ پورا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد فوراً وہ محلے والے بیٹھ جائیں. محلے والوں کے بیٹھنے سے کیا نفع ہوگا پتہ ہے؟ 8 کی جماعت ہے, اس میں سے آج 2 نے ہی ملاقات کی ہے. جب وہ الگ سے بیٹھیں گے نا, تو جو جن 6 نے ملاقات نہیں کی ان کو فکر دلانا ہوگا, بھائی تمہارا آج استعمال نہیں ہوا, آج نیت کر لو. اب بتاؤ کیا کرو گے؟ دیکھو ہمارے ذمہ یہ مکان ہے اور ہم فلاں مکان میں جائیں گے, تم کو یہ مکان کر لینا ہے. تو اس طرح سے تقسیم کار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اہتمام سے اس کی آواز چلائیں کہ ہر محلے والے کو بڑے مشورے کے بعد چھوٹی محلے گلی والوں کو پیٹا جماعتیں جو ہے ان کو بیٹھنا ہے اور اپنا نظام بنانا ہے. اس سے 100% تک پہنچنا ہوگا. ابھی دیکھو بھائی نے کیا سنایا کہ آسان ہے, اس کے بعد بھی 100% ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی. اگر ہمارا گھروں پر جانا نہیں ہوگا نا, تو پھر اس گھروں سے خیر کی امید چھوڑ دینا. اور بہت ساری باتیں ان گھروں میں روز پہنچ رہی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ساری باتیں گھروں میں پہنچ رہی ہے, اور وہ باتیں ان کا وہ ذہن بنا رہی ہے, وہی ذہن بنا رہی ہے جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہے.
तो हम ये सोचें कि बातें औरों की सुने और फिक्र हमारी हो, तो ऐसा हो जाएगा? हम अपनी फिक्र ही नहीं सुनाएंगे। तो हमारे मौलाना यूनुस डोडिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ज़माना हुआ सुना रहे थे कि मैं बम्बई में एक आदमी का मेहमान बना, तो वो घर में मेहमान थे, तो वो उसके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, तो हम बारात को निकले, तो मैंने उसको उंगली पकड़ ली, चलो बेटा। तो बाहर निकले तो मैंने उसको पूछा, बेटा दुकान से क्या लेना है? कहा फ्रूटी लेनी है, फ्रूटी। तो मैं सोचा फ्रूटी क्या होगी, उस जमाने में फ्रूटी अभी आई, अल्लाह बोलो, अभी आई नहीं थी। तो उसने कहा फ्रूटी लेनी है। तो मैं कहा भाई फ्रूटी क्या है? तो दुकान वाला कहने लगा अभी आई नहीं है, उसकी एडवर्टाइज आई है। क्या आई है बोलो? अभी फ्रूटी आई नहीं है, उसकी क्या आई है? ये बच्चे घर में सोशल मीडिया, उस जमाने में टेलीविजन था, उसमें उसकी एडवर्टाइज देखी, उस बच्चे का ज़हन बना मुझे फ्रूटी लेनी है। तो अब तो घर घर में टीवी आ गई है, जेब में टीवी आ गई है। एक छोटी सी बच्ची की अभी फ्रूटी नहीं आई, मगर फ्रूटी की का ज़हन बना, तो जो और बातें हमारे घरों में दाखिल हो रही है, क्या उसका ज़हन बच्चों का नहीं बनेगा? इसलिए गुजारिश है कि इसको आप मामूली न समझो, हदफ बनाओ, हदफ। मियाँ जी मेहरा रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते, हर 15 दिन में ऐसी मेहनत का निजाम बनाओ कि 100% मुलाकातें पूरी हो जाए। हर 15 दिन में 100%। कितने टका बोलो? 100%। कोई इस मजमे में कोई मस्जिद है जो ये कहती हो 100% हम 100% मुलाकात कर लेते हैं? कोई महीने में कर लेता हो? आपके महीने में हो जाती है माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 मस्जिदें हैं पूरे जिले की, महीने में। गुजारिश ये है कि इसको 15 दिन पर लाओ। एक मुसलमान 15 दिन तक पता नहीं क्या कचड़ पचड़ कहां का सुनता है, 15 दिन में भी उसको अल्लाह रसूल की बात नहीं पहुंचेगी तो उसका दिमाग कैसा हो जाएगा? इसलिए हम 15 दिन में एक मरतबा 100% मुलाकात हमारा पूरी हो जानी चाहिए। और भाई से मैंने आगे बात पूछी, मस्जिद में घर में बैठ कर करते हो या घर में के बाहर करते हो? तो भाई ने सुनाया कि अक्सर घर के बाहर ही करते हैं, घर में बैठकर कम करते हैं। हमारे हजरत जो कह रहे हैं वो करो। देखो हमारी कितना बुनियादें हिल गई है, फिर कैसे ये उगेगा? सारी चीजें हमारी अपनी जगह से हट रही है। हजरत से आपने सुना है कि घर में बैठकर बात करनी चाहिए? अल्लाह भाई सुना है? किसने किसने सुना है? देखो अक्सर मैंने सुना है। हमारी गुजारिश है आप इस प्रथा को छोड़ो मत। आपको पता है उससे क्या होगा? घर में बैठकर बात करना और ना करने का क्या नफा नुकसान है? हम जो फिक्र लेकर गए हैं मस्जिद से, वो फिक्र आप उस घर के एक आदमी को देना चाहते हैं या पूरे घर को देना चाहते हैं? अरे बोलो भाई। अगर आपने घर के बाहर एक आदमी से बात कर ली तो उसके घर में अभी और 2-4 मर्द हैं, भाई है, बेटे हैं, 2-4 औरतें हैं। एक आदमी की आपने फिक्र बनाई, वो 8 को तो आपने छोड़ दिया, मोहल्ले के घर के सारे लोगों को छोड़ दिया। अब घर में 9 एक तरफ और एक आदमी एक तरफ। अब ये आदमी जिससे आपने बात की वो घर में अपनी बात लेकर भी गया, लेकिन अगर घर के 9 लोग एक तरफ हैं तो जब वो बात करेगा तो 9 भारी होंगे या एक भारी होगा? 9 भारी होंगे। इसलिए हमारे हजरत कहते हैं कि हम घर में बैठकर बात करें। उसका फायदा क्या होगा पता है? उसका फायदा कि अगर तुम घर में बैठकर बात करोगे ना तो जितने मर्द होंगे वो तुम्हारे सामने आकर बैठ जाएंगे। आप कहो कि भाई जो मर्द है उनसे हम बात करना चाहते हैं, तो सारे मर्द एक साथ आपकी बात सुनेंगे। और फिर हजरत ये फरमाते हैं उस घर में औरतें भी है, औरतें भी है। तो हम औरतों के मुतालिक मर्दों से ये नहीं कहेंगे उनको भी बुला लो, वो हमारी बात सुन लें, ये फितने की चीज है, ये बात नहीं कहेंगे। पर औरतों की आदत में ये है कि जब पार का कोई आदमी घर में आता है ना, तो वो घर के किसी भी खुणे में हो, उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो यहां सुनती है। अरे भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो किसी भी कोने में हो तो वो बहुत हसास होती है, तो उसके एकदम कान खड़े हो जाते हैं और वो यहां सुनती है कौन आया है, क्या बातें कर रहा है। तो हमारे हजरत फरमाते हैं तुम 6 नंबर की बात करो। कौन सी बात करो? और जरा जोर से करो, ताकि अगर उसके कान खड़े हुए हैं तो हमारी बात उसको, तो वो घर के मर्द भी मुतफक्किर हो गए, घर की औरतें भी मुतफक्किर हो गई। और हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर उसको कान खड़े न भी हुए बात नहीं पहुंची तो औरतों की एक दूसरी कमजोरी क्या है पता है? जब तक वो पूछ नहीं लेगी तब तक चैन नहीं आएगा। तो जैसे हम घर से बाहर निकलेंगे तो आकर से पहला सवाल पूछेगी, क्या पूछेगी? कौन है, क्यों आए थे, क्या कह रहे थे। जब तक हम नहीं कहेंगे उसको चैन बढ़ेगा। अभी आपको मौलाना तजर्बा नहीं है, अभी 1 हफ्ते 4 महीने हुए शादी को, अभी दिन गुजरने दो, तजर्बा हो जाएगा। वो नवे दूल्हे हैं, कल से बहुत टिप टॉप घूम रहे थे। मैंने कहा मौलाना साहब बड़े, तो उनके मामू कहने लगे अभी नया दूल्हा है। अब वो कपड़े भी ठीक हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। वो एक बारात जा रही थी,
ایک بارات جا رہی تھی تو اس کے آگے بڈھے بھی ناچ رہے تھے, جوان بھی ناچ رہے تھے. تو لوگوں نے جوانوں سے پوچھا آپ کیوں ناچ رہے ہیں بھائی؟ تو اس نے کہا آج اس کی باری ہے, کل ہماری باری ہے, اس لیے ناچ رہے ہیں. اچھا چلیں, بہت اچھا. بڈھوں سے پوچھا آپ کیوں ناچ رہے ہیں؟ کہا اور ایک پھنس گیا, اور ایک پھنس گیا. تو کپڑے وپڑے سب پریس وریس سب ٹھیک خود بخود ہو جائے گا, کپڑے وپڑے سب تھوڑے دنوں کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. اچھی بات. میں کیا کہہ رہا تھا, تو عورت کو چین نہیں پڑتی, اس کا تجربہ بعد میں ہوگا آپ کو. تو عورت کو چین نہیں پڑے گی. تھوڑے دن وہ جیسے ہم گھر سے نکلیں گے نا تو کیا پوچھے گی؟ ارے بھائی کیا پوچھے گی, یہ کون لوگ تھے, کیوں آئے تھے؟ تو گھر کے سب مرد کہیں گے مسجد سے آئے تھے, مسجد والے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے. تو بولو ہماری بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ یہ بہت طاقتور عمل ہے. اور ایک بات بتاؤں, یہ جتنا فساد معاشرے میں ہے نا, اگر یہ صحیح گھروں میں پہنچنا ہو جائے نا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سب کے دروازے بند ہو جائیں گے, ساری گندگیوں کے ڈانٹ لگ جائیں گے, ڈانٹ. دکھ کی بات یہ ہے کہ سب کی باتیں گھروں میں پہنچ رہی ہے, ہماری باتیں گھروں میں نہیں پہنچ رہی ہے. سب کی باتیں پہنچ رہی ہے, ہماری باتیں نہیں پہنچ رہی ہے. یہ تو ابھی ہماری تھوڑی پہنچی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر 100% پہنچ جائے نا, ابھی دیکھو ان سے پوچھا 100% گھر پر ابھی ہمارا پہنچنا نہیں ہوا, اگر پہنچنا ہو جائے نا تو ایک دم ڈانٹ لگ جائے گی, صفایا ہو جائے گا. اس لیے میری بہت ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, ہم اس کو ہلکے سے نہ لیں. ہماری 5 اعمال میں 2.5 گھنٹے اگر صحیح رخ کے قائم ہو گئے نا تو سارے تقاضے خود بخود پورے ہو جائیں گے. سب سے بڑی کمزوری ہماری 2.5 گھنٹے میں ہوتی ہے, اس لیے اس کو ہم ہلکے سے نہ لیں. 2.5 گھنٹے لگانے بھی ہیں, اور ایک ایک گھر تک پہنچنا ہے. ایک ایک گھر تک ہم اپنی فکریں بھر دیں, وہاں اتنی بھر دیں کہ کوئی غلط کو ہمارے محلے میں جگہ ہی نہ ملے, کوئی غلط کو ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ملنی چاہیے. اگر ہم اپنی بات لے کر نہیں جائیں گے تو پھر اور باتیں آ جائیں گی, اور اگر آپ لے کر گئے تو انشاءاللہ آپ کی باتیں اگنا شروع ہوگی. ہم لوگ موزمبیق گئے, تنزانیہ جماعت میں تھے. تنزانیہ میں عجیب و غریب حالات ہو گئے. وہاں 90% مسلمان تھے. دن گزرتے گئے, وہاں حالات نے پلٹا کھایا. ایک دم بہت بڑا مجمع مرتد ہو گیا. 60% مرتد ہوگا, 60% رہ گیا, 30% مرتد ہو گیا. عجیب و غریب حالات. تو ہم ایک لوگ یوگنڈا کی بارڈر پر پہنچ گئے, تو وہاں مسجد میں کوئی آ ہی نہیں رہے تھے. تو ہم نے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. ملاقاتوں کا سلسلہ تو پہلے دن امیر صاحب نے مجھے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ جوڑ بنا دیا. چرخا صاحب ہمارے امیر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے امیر صاحب مولانا کے ساتھ بھیجا. تو ایک گھر میں ہم گئے, وہ مسجد والے گھر والے مسجد میں نہیں آتے تھے. تو میں نے وہاں مسجد 6 نمبر کی بات کی اور مسجد میں تشکیل کی. تو ان کے وہاں مرد بھی آ جاتے ہیں, عورتیں بھی آ جاتی ہیں. تو انہوں نے نیت کی کہ ہم آ جائیں گے. وہ آ گئے نماز پڑھنے. دوسرے دن امام صاحب سے میں نے کہا جیسے میں نے کل بات کی تھی ایسے آج آپ بات کرو. تو دوسرے گھر میں بات کی, تو دوسرے گھر میں بات کی تو وہ بھی آ گئے. جیسے ہی وہ آئے نا, امام صاحب نے ایک چیخ لگائی اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب جو چیز تم ہم کو بتا رہے ہو روزانہ گھر گھر جانا, اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو ہمارا ایک گھر مرتد نہ ہوتا. ہم کبھی ان کے پاس گئے نہیں تو دوسری فکریں پہنچ گئی. ہمارے گھروں میں فکری ارتداد آتا ہے. حضرت فرماتے تھے پہلے فکر میں ارتداد آئے گا, پھر اس کے بعد عمل میں ارتداد آتا ہے, عمل میں, پھر اس کے بعد زبان پر ارتداد ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے بہت سارے بچوں کو اسلام اچھا نہیں لگ رہا. فکری ارتداد بہت گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اسلام کی باتوں پر واندے آتے ہیں. ہم اگر یہ باتیں نہیں پہنچائیں گے تو یہ جراثیم گھروں میں گھس جائیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ نے جس کو کھانا دیا ہو اس کے ذمے ہے بھوکے کو کھلائے, جس کو پانی دیا ہو اس کے ذمے ہے پیاسے کو پلائے, جس کو اللہ نے دین دیا ہے وہ جو نہیں جانتے ان کو نہیں دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا ما بال اقوام يتعلمون ولا يعلمون. دینداروں سے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خود جو دین سیکھے ہوئے ہیں دوسروں کو نہیں سکھاتے. اگر انہوں نے ایسا کیا میں ان کے ساتھ یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. پھر دوسری جمعہ میں فرمایا ما بال اقوام يتعلمون ولا يعلمون. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جو سیکھے ہوئے ہیں دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہیں. تو وہ جس کے لیے کہہ رہے تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو, ان کو حضور 1 سال کا موقع دو, ہم یہ سارا کر دیں گے. ہم سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ خطاب صاحب ہی ہیں. ہم کو اللہ نے دین دیا اور ہم اپنے پڑوسیوں کی فکر نہ کریں. اس لیے میری گزارش ہے آج تو توبہ کرو اللہ سے کہ اللہ پاک ہم سے بھول ہوئی ہے, ہم نے بہت بہت کچھ کھو دیا ہے. اللہ تو ہمیں معاف کر, اور اب جو ہے اس کو سمیٹنا ہے. اس کے لیے آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ موت تک میں کبھی بھی اپنے محلے میں پھرنا بند نہیں کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟
और नियत करो कि एक 15 दिन में मुलाकातों का निजाम 100% लाना है काबू में। 15 दिन में करोगे? कौन कौन नियत करता है 15 दिन में करेंगे? और तीसरी गुजारिश ये, घर में बैठकर करो। जिस घर में जाओ उस घर में जाकर कहो भाई हम आपके घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। आप ये ना सोचो छोटे छोटे घर हैं, भाई उस छोटे घर में अगर रिश्ता लेकर आते हैं लड़के लड़की का तो कहां बैठकर बात करते हैं? अरे बोलो भाई, घर में है तो हम भी घर में बैठकर बात करेंगे। घर में बैठकर बात करोगे? कौन कौन नियत करता है घर में बैठकर बात करेंगे? और चौथी गुजारिश जो भाई ने सुनाई, दुख की बात, कि हम ईशा बाद मुलाकातों में जाते हैं, मेरी गुजारिश है फजर के बाद जाया करो। फजर में हम भी फारिग हैं, घर वाले भी फारिग हैं, हम भी फारिग हैं और घर वाले भी। और शैतान हमको ये धोखा देता है कि अक्सर घरों के लोग सोए हुए होते हैं। बोलो यही जहन में है ना? अरे बोलो भाई ये जहन में है ना? ये जहन किसके किसके जहन में? जरा हाथ उठाओ कि फजर के बाद अक्सर लोग सोए हुए। जरा अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ। देखो अच्छा खासा एक मजमा है कि लोग फजर के बाद सोए हुए होते हैं। मैं आपको कहूं तो ये भी एक धोखा है खूबसूरत शैतान का। बहुत बड़ा मजमा फजर के बाद नहीं सोता है। शैतान ने हमको समझाया सो जाता है। कितना बड़ा मजमा जागता है बताऊं मैं आपको, कितना जागता है इस मजमे में फजर के बाद जो नहीं सोते हैं? जरा हाथ उठाओ, जरा अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से सबको नजर आए ऐसे। जो नहीं सोता देख लो जरा, भाई रखो मत, उठाओ उठाओ, देख लो ये सब मजमा जाग रहा है। देख लिया भाई, कुछ आंखें खुली? अल्लाह भाई कुछ आंखें खुली? ये पूरा मजमा नहीं सोता है, मगर हमको शैतान ने क्या समझाया कि सो जाते हैं। भाई घर में गए, खुदा ना करे अगर वो सोया हुआ है उसके पड़ोसी का कर लेंगे, वो सोया है उसके पड़ोसी का कर लेंगे, इतने में ये जाग जाएगा, फिर इसके पास रिवर्स आ जाएंगे। लेकिन फजर के बाद के माहौल को बनाओ, मोहल्लों में इस जिक्र के साथ फिरो। ये फिरना बहुत बड़ा काम करेगा। बहुत दिनों से ये घरों में जाने का माहौल छूट गया था। जब ये बातें शुरू हुई तो एक इलाके वालों ये बातें सुनी, तो दूसरे साल जब हमारा काफिला वहां गया तो उस साथी ने कारगरी सुनाई कि मैं तो घर के बाहर मुलाकात कर लेता था बाजार में, लेकिन जब से आप लोगों ने कहा तो हमने मोहल्ले में जाना शुरू किया। तो मैं पहले दिन गया तो मैंने 3 तब्दीलियां देखी मोहल्ले में। वो कहने लगा पहले ही दिन, तो मैं तो हैरान हो गया कि पहले दिन में क्या 3 तब्दीली। तो वो कहने लगा कि हम गए ना तो औरतें होटले पर बैठी हुई थी, जैसे हम गए तो वो घर में चली गई, वरना हम नहीं जाते थे तो होटले पर भरे हुए थे। हमको देखकर होटले खाली हो गए। एक फिर वो कहने लगे बच्ची फुल बैट हम खेलती थी यूं, अब जवान बच्चे कूदे अच्छा लगता है, कि जैसे हमको देखा वो खत्म, वो घर में चली गई। फिर तीसरा उसने क्या सुनाया कि 2 जो नौजवान हमारी गली में खड़े थे और बाइक पर पराए मोहल्ले के आकर खड़े थे, पता नहीं क्यों खड़े थे। जैसे ही उन्होंने हमको देखा गाड़ी स्टार्ट की और कहा हमने अभी किसी से बात नहीं की, किसी के घर में नहीं गए, कहा हम खाली गए हैं गली में। ये मजमा गलियों में फिरेगा ना, गलियों की गंदगी कट जाएगी। हमने गलियों में फिरना बंद कर दिया, इसलिए कीचड़ आ गया है। अब नियत करो गलियों में फिरेंगे इंशाअल्लाह, घरों में बैठकर बात करेंगे। एक नफा तो ये होगा। दूसरा नफा क्या होगा पता है? जितने लोगों तक तुम पहुंचोगे और आपके कहने सुनने से वो दीन की तरफ मुतवज्जे हो गए, वो आपके खाते का हिस्सा बन जाएगा, तुम्हारी कमाई हो जाएगी। कमाई, हम आबे हयात पीकर नहीं आए हैं, थोड़े दिनों के बाद हमको मर जाना है। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इस दुनिया से इंसानों को कमा कर मरो। लोग चीजें कमा कर मरते हैं, तुम इंसानों को कमाओ। हम इंसान कमाएं। बाज इंसान तुम्हें ऐसे जोरदार मिलेंगे इस मेहनत में, ऐसे जोरदार कि दुनिया में वो हमसे अच्छा काम करेंगे, हमसे जोरदार काम करेंगे, दुनिया में बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन उसको हमने कमाया है तो कयामत के दिन वो जो भी करेगा खाते में इंशाल्लाह हमारे आएगा। देखो हजरत उमर 10 साल हुकूमत की, कितना बड़ा काम किया, आधी दुनिया पर हुकूमत की, वो सारा काम करके गए। लेकिन वो देखना यह है उमर को लाया कौन था। तो उमर को उनकी बहन ने तमाचे खाए थे, बहन लाई थी, बहन वो सारा नहीं कर सकी। तमाचे मारने वाले ने जो किया वो तमाचे खाने वाली नहीं कर सकी, मगर जितना तमाचे मारने वाले ने किया है वो खाने वाली के खाते में चला गया। तो आपको भी नहीं पता कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो कैसे कैसे काम करेंगे। रुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिअ, कि जिनको तुम बातें सुना रहे हो सकता है वो तेज रफ्तार दौड़कर आपसे भी आगे निकल जाएं। जाने दो उसको, जहां जाना हो, खाते में हमारे ही है, खाते में। तो वो खाता, शैतान खाता नहीं खोलने देता कि अपना अपना करके मर जाओ, कोई बात नहीं। ये खाता खोलकर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे फिरते हैं उनके खाते खुले खुले रह जाते हैं, बंद नहीं होते। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते थे शैतान को अदावत है
दावत से कि ये तबलीग नहीं करना चाहिए, बाकी जो करना हो करे, क्योंकि मरेगा तो इसका एक सुबह लगा ही मोहताज हो जाएगा। पर ये तो आज यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, खाते ही खोल दिए इसने, तो पता नहीं कितने खाते खोले हैं, तो ये तो पता नहीं कितने लोग, तो इसका खाते नहीं खोलने चाहिए, इसलिए माजूर कर देता है। क्या कर देता है? शैतान जो है ना नबियों से पहले पैदा हुआ। किससे पहले पैदा हुआ? अल्लाह बोलन भाई, किसकी कौन सी नाड़ी दबाने की उसको खबर है। कभी अम्मी के नाम की दबा दो, किसी की बीवी के नाम की, किसी के बच्चों के नाम की, किसी ब्लड प्रेशर के नाम की, किसी के घुटने के नाम की, किसी के कमर के नाम की, वो सारे काम करता है। शादी में जाता है, दुकान पर जाता है, तबलीग की बात है, वो मेरे घुटने का जरा मसला है, सारे काम करता है। पर तबलीग की बात है तो मेरे जरा कमर का मसला है। तो किससे इसको डैमेज करने का वो जानता है। सबकी नाड़ी उसने दबाना कोशिश की, तो हमारी भी नाड़ियां दबा देता है। हमको खबर नहीं पड़ती कि मेरी दबा डाली है, गला भी मेरा दबा दिया। तो अब उसको करीब नहीं आने देना, दबाने नहीं देना, उसका लुकमा नहीं बन जाना, और हिम्मत से चलना है। कौन कौन नियत करता है करेंगे? कौन कौन लुकमा नहीं बनेगा? लुकमा नहीं बनेगा उसका मतलब ये होगा कि अमल नहीं छोड़ेगा। छोड़ दिया तो लुकमा। नियत करते हो सब? रोजाना मजमा बढ़ाना है, रोजाना मजमा। अल्लाह बोलो ना भाई। और बढ़ाने के लिए क्या करोगे? मस्जिद में ऐलान करोगे, ओ भाई हमारा मजमा बढ़ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसा करोगे? मजमा बढ़ाने के लिए क्या करना है? मीठे बोल बोलना है। क्या बोलना है? बोलो। रवैये अच्छे बनाने हैं। कैसे बोल बोलना है? हम लोग तुर्की गए तो तुर्की में ऐसा लिखा था, मीठा खाओ। क्या बोला? मीठा बोलो, मीठा खाओ और मीठा बोलो। ऐसा ना बोलो जैसे कुत्ता काट बोली, जब बोलता है किसी को काट ही लेता है। ढेला मार बोली, जब मारता है ऐसा मारता है ढेला मार। तो उसके लिए क्या करो? मीठे बोल बोलो। यूं लिखा था, मीठा खाओ मीठा बोलो। मीठे बोलों की घट हो गई है, घट। हम लोग एक मरतबा भरूच इज्तिमा में थे, तो एक रिक्शे पर लिखा हुआ था, मेरा दिल बेचने का है, दिल बराए फरोख्त, दिल दे दिया जान भी देंगे। जो दिल दे देता है वो क्या दे देता है? जान भी देता है। तो दिल दिया तो जान भी, दिल तो दे। तो उसने लिखा दिल देने का है कोई खरीदने वाला? अरे भाई, दिल कोई बेचने की चीज है? आंख निकल जाए तो जिंदा रहेगा, पैर कट जाए तो जिंदा रहेगा, हाथ कट जाए, दिल निकाल दिया तो मर जाएगा। हमारी जान आप पर फिदा है, हम मर जाएंगे आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमने आपको दे दिया। अच्छा, दिल दे देंगे तो आप भी हमारे हो जाएंगे? हाँ, दिल भी दे देंगे। हमारा है कोई खरीदार? यूं, मगर खरीदार मार्केट में इतना भाव है कि उसकी कीमत किसी के पास है ही नहीं। इतनी भारी कीमत कि किसी के पास उसकी कीमत है ही नहीं। उसने कीमत नीचे लिखी थी, दिल बराए फरोख्त, दिल बेचने के लिए है। फिर नीचे लिखा था, कीमत एक मीठा बोल। मुझे कोई एक मीठा बोलकर खरीदना चाहे तो खरीद ले। वो जानता था कि सबके पास सब कुछ है, एक मीठे बोल नहीं है, तो मुझे कौन खरीद सकता है? कोई खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? अरे बोलो भाई, मीठे बोल नहीं है। तो हमें वो मीठे बोल लाने हैं। कौन कौन नियत करता है मीठे बोल बनाएंगे? और दूसरा, व्यवहार रवैये अच्छे करने हैं। अल्लाह के नबी के पास जो आता था ना, वो हुजूर का होकर रह जाता था रवैये से। कैसे? रवैये से। तो हमें इंसानों को जीतने के लिए रवैये बनाओ। हुजूर अलैहि सलाम के पास एक आदमी आया, उसका नाम था ज़ईद रदी अल्लाह अन्हु। वो गुलाम था, अम्मी जान खदीजा ने हदिये में दिया था। किसने हदिये में दिया था? हुआ ये था कि काफिला जा रहा था, एक काफिला, उस काफिले पर किसी ने हमला किया और लूट लिया, तो उसमें हजरत ज़ैद भी लूट में आ गए। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको 4000 दिरहम में खरीदा। 4000 दिरहम में कैसा जोरदार आदमी होगा। जब हुजूर से निकाह हुआ तो वो उनको हदिया दे दिया, हदिये में दे दिया। तो हदिये में दे दिया तो हुजूर के पास ही रहता था। उसका अब्बा परेशान। मैं बता रहा हूं कैसे लोग हुजूर के पास आने वाले हुजूर के हो जाते थे, छोड़कर नहीं जाते थे। उसका बाप परेशान, इस गली उस गली यहां वहां घूम रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटा। उसने अशार जो पढ़े हैं, अभी टाइम नहीं है मैं उसके अशार को तुमके तर्जुमे सुनाता। उसके अंदर एक शेर ये भी है, और मेरे बेटे, मैं इतने ज़माने से तुझे ढूंढने में मैंने मिट्टी छान मारी है, और मैं मौत तक मिट्टी को छानता रहूंगा जब तक तो मुझे मिल ना जाए मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब। ये उसके अशार का मफहूम है। अल्लाह की शान, उस इलाके का एक काफिला हज के लिए गया, तो उन्होंने देखा कि ओ वो लड़का तो यहाँ है,
تو उसके अब्बा को जाकर खबर दी कि तुम्हारा बेटा मक्के में है और फलां सरदार है उसके पास है। अच्छा, तो बड़ी फिदिये की रकम ली और अपने भाई को लिया और चला और जाकर पूछा भाई ये आदमी कौन है? कही ये फलां है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि उन्होंने जाकर कहा ऐ लंबा, उसमें 4-5 बातें उसने कही। ऐ कुरैश के सरदारों, ऐ हरम के पड़ोसियों, तुम्हारी तो फितरत में है, तुम तो गुलामों को आज़ाद करते हो, तुम्हारी तबीयत में है कि तुम तो गुलामों को आज़ाद करते हो। तो लंबी बातें के हुजूर ने पूछा क्या बात है, तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? कहा हमारा भी गुलाम आपकी खिदमत में है, मेरा बेटा आपके पास है, मैं उसको आज़ाद, मैं उसके लिए इतने मुद्दत से फिर रहा हूँ, मुझे पता चला आपके पास है, मैं उसको लेने आया हूँ, आप मुझे उसे दे दीजिए। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम ये क्या लाए हो? कहीं फिदिये की रकम है, आप ले लीजिए मगर वो हमको दे दीजिए। हुजूर फरमाने लगे इधर आओ, अगर वो आना चाहता है तो बगैर फिदिये के आप उसको ले जाना, और अगर नहीं आना चाहता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं भेजूंगा। तो कहने लगे हमें मंजूर है। भाई कैसे मंजूर है? कभी भला ऐसा भी हुआ है कि बेटा मेरा हो और वो मेरे साथ ना आए? तो मुझे ये शर्त मंजूर है। और रही बात फिदिये को न लेने की, तो आपने हम पर हक से ज्यादा एहसान कर दिया, फिदिया भी नहीं, इतनी बड़ी रकम छोड़ दी, आपने बड़ा एहसान किया। उन्होंने फरमाया ज़ैद आ जाओ। आया, इनको जानते हो? जी हाँ। कौन? का मेरे अब्बा है, ये का मेरे चाचा है, बात कर लो। वो जो देखा है तो कैसा हो गया होगा, और जो बात की वो मेरे बेटे, हम आपके लिए सरगर्दा फिर रहे थे ऐसे 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 ऐसे, और बेटे आपके आका ने हम पर एहसान किया कि हमें यह कहा कि अगर वो आना चाहें बगैर फिदिये के ले जाओ, बेटा हम आपको लेने आए हैं। अभी तो बात भी पूरी नहीं हुई, वो हुजूर की तरफ यूँ देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ैद मुझे भी तो जानते हो ना? बस इतना जुमला कहना था कि हजरत ज़ैद धड़ाम देकर ज़मीन पर गिर गए, हुजूर की गोद में गिरे। हुजूर ने उसको यूँ बाहों में ले लिया और फरमाया, वो ज़ैद कहने लगे हुजूर मैं आपको छोड़कर किसी के साथ नहीं जा सकता, हुजूर मैं आपको। तो बाप कहने लगा बेटे तू क्या कर रहा है? तू गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देता है, गुलामी को तो आज़ादी पर तरजीह देता है, अपने खानदान और अपने अहलो अयाल को छोड़कर इनके साथ रहने को पसंद करता है। जैसे ही कहा गुलामी, हुजूर ने बाहों में लिया और हरम के करीब गए और कुरैश के सरदारों के बीच में कहा कि आज से ज़ैद को अपना बेटा बना रहा हूँ, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। क्या लाड़ पाया प्यार दिया होगा कि आया हुआ अपने बाप को छोड़ दे। उसके बाप ने भी ये मंजर देखा, उसके आंखों से आंसू निकल गए और वो उसको छोड़ने पर राजी हो गया। हमारे पास आया हुआ हम उसको इतना लाड़ प्यार दें कि वो हमारा होकर रह जाए। भूलें सब करेंगे, गलतियां सबसे होगी। अरे भाई जो काम करता है वही भूले करता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान कारज़ार में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान कारज़ार में। वो तिफले मक्तब क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो सवार ही नहीं हुआ वो थोड़ी गिरेगा। वो गिरा है आप ये कहते हैं वो गिर गया, अरे भाई गिरते ही है शहसवार, घुटनों के बल चलने वाले नहीं गिरते। तो साथी जो काम करते हैं वही भूले करेंगे, हम मन बड़ा बना देंगे, मन बड़ा बना देंगे। शायर कहता है कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ कहते हैं पोजीशन को, पोजीशन कैसे बनाओ? समंदर, सब अंदर, समंदर। इतनी इतनी बात में शिकायत, ये औरतों की आदत है। छोटी छोटी बात में शिकायत औरतों की आदत है। रिसा जाना छोकरियों की तरह औरतों की आदत है, रिसा नहीं जाना छोकरियों की तरह, रिसाला रिसाला नहीं रहने का। शायर कहता है कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ मानी पोजीशन, दिल बड़ा बना दो, कैफ पैदा कर समंदर की तरह। वो सातें चौड़ाइयाँ, वो सातें गहराइयाँ, खामोशियाँ, समंदर की ये 3 खूबियाँ हैं। तुम्हारे तो समंदर किनारा है, बहुत चौड़ा है, और दूसरा बहुत गहरा है और खामोश है। गहरा, वो सतें गहराइयाँ खामोशियाँ, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत। उर्दू में दरिया कहते हैं नदी को, नदी जाती है ना तो उसके पानी यूं उछलता है, खाट खुट बहुत शोर करता है। तो कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, समंदर की खामोशी, नदी के बहते हुए पानी जो उछल कूद कर रहा है उसे कह रहा है तू क्यों चल रहा है, इतना शोर तूने क्यों कर रखा है। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत कि जिसमें जितना ज़र्फ है, जिसका जितना बड़ा बर्तन होता है वो खामोश होता है, छोटे बर्तन वाले छलक जाते हैं। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत कि जिसमें जितना ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। हम छलक नहीं जाएंगे, हम सह जाएंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे।
اور ساتھیوں کو بنائیں گے. اس طرح ساتھی بنتے ہیں. نئے نئے ساتھیوں کو بنانا ہے, جو آئے ہوئے ہیں ان کو سنبھالنا ہے, ایک کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا. کرو گے انشاءاللہ. جو شکایت کرتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے ساتھیوں کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرو. صحابہ کے صفات میں ہیں, ان کا سنبھالو, دعائیں بھی کرو. سب کرو گے انشاءاللہ. بھائی آپ آ جاؤ, بہت اچھے کان بن کر کے کھڑے ہیں, آپ کو تھوڑی کان بند کرنے دیں گے. یہ کل خواص کو جوڑ رہے تھے نا, تو اس لیے مجھے اندازہ لگا کہ مضبوط آدمی ہے. ہاں بھائی, تمہاری مسجد میں تعلیم کا کیا حال ہے؟ عشاء ہوتی ہے. عشاء بعد کتنی دیر ہوتی ہے؟ 9 منٹ 10 منٹ. ٹھیک. کون سی کتاب سے ہوتی ہے؟ فضائل اعمال سے. ایک حصے میں سے پڑھتے ہو, بدل بدل کر پڑھتے ہو؟ بدل بدل کے. اچھی بات. کتنا مجمع ہوتا ہے؟ 8-10 کب سے اتنا مجمع ہے؟ برسوں سے. برسوں سے. کیونکہ آپ کی مسجد میں سب وہی نماز پڑھتے ہیں آپ کے محلے کے؟ جی. ٹھیک. اچھا, گھروں میں کتنے گھروں پر تعلیم ہے؟ گھروں میں 6 یا 7. کتنے گھر ہیں؟ گھر 300 کے قریب. 300 کے قریب. وقت لگائے ہوئے ساتھی کتنے ہیں 4 مہینے چلنے والے؟ کل ملا کر 40. 40. اور 6 ہی گھروں میں تعلیم ہے. جی. اچھی بات. آپ کے محلے میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے مستورات کی؟ جی. کتنی جگہ پر ہوتی ہے؟ ایک ہی جگہ پر. او بیٹا, بڑوں کو نہیں جانے دیں گے تو آپ کو کیسے جانے دیں گے؟ آ جاؤ پیارے, اتنے اچھے منع ہو کر ایسا کرتے ہو بیٹا, اتنے پیارے ہو کر. ہاں جی. تو آپ کے وہاں وقت لگائی ہوئی بہنیں کتنی ہیں؟ 12. آپ کا تعلیم کا حلقہ ایک ہی ہے؟ جی. ایک ہی ہے. اچھی بات. آپ کے پاس تو 12 بہنیں ہیں, 4 حلقے آپ بنا سکتے ہو, ایک کیوں بنایا آپ نے؟ وہ اس میں بھی یعنی حلقے میں پہنچنے والی, کام کرنے والی بہنیں 2 ہی پہنچتی ہے, 2 یا 3. اچھی بات. دوسروں میں سستی ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے گشتوں کا کیا حل ہے؟ بس منگل کے دن ہوتا کتنے ہے. ساتھی ہوتے ہیں؟ وہی 5-6. 5-6 ساتھی ہوتے ہیں. محلے میں 100% گشت ہو جاتا ہے؟ جی. ہم جس محلے میں گلی میں جاتے ہیں کوئی مکان چھوڑتے نہیں, 100% مکان پورے ہو جاتے ہیں ایک گشت کے دن؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. جیسے 100% مکان کتنے گشتوں میں پورے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے میں, 1 مہینے میں, 2-2.5 مہینے میں. 2-2.5 مہینے میں. چلے ٹھیک. اور دوسرا گشت کا؟ دوسرا گز پڑوس میں 8 کلو. کتنے ساتھی جاتے ہو؟ 3 ساتھی. 3 ساتھی. ان بن نے 3, حور, نور اور ظہور. ٹھیک ہے. بہت اچھا. ایک استقبال میں, ایک متکلم اور ایک دروازے پر کھڑا رہے گا, ہے نا؟ بہت اچھا. ایک اعلان, ایک بیان اور ایک استقبال. فرشتوں کو گشت میں بھیجیں گے. کس کو بھیجیں گے؟ فرشتوں کی جماعت, کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے نا. ہاں. کتنی مدت سے وہاں گشت میں جاتے ہو؟ ایک جگہ کتنی مدت گشت کرتے ہو؟ یہ جو جگہ ہے وہ تقریباً 6 مہینے سے چل رہا ہے. اس بیچ میں کٹ کے یعنی بستی بدل دیتے, لیکن یہ زون کے مطابق کام گزشتہ سال ہوا تھا, تو وہاں ابھی نماز زندہ ہوئی ہے. تھوڑا سا کام کروا کر وہاں کام, دوسرا کام تھا تو ہمیں ہی دیا گیا بار بار. آپ ہی کو؟ تو آپ کو پھر نظر لگ گئی کہ آپ ہی کھو گئے. یوں نظر لگ گئی نا. 6 مہینے کتنے, 3 ہی رہ گئے. پھر نظر کی, نظر کو نظر کی نظر لگ گئی. جی. تو وہاں ایک جگہ پر 6 مہینے میں آپ نے اذان وغیرہ شروع کیا نا؟ جی. وہاں مدرسہ بھی شروع ہو گیا. شروع ہوا؟ اور کوئی کام شروع ہوا؟ ماشاءاللہ نماز تو بڑا عمل ہو گیا. نہیں, ساتھی آئے ہوئے ماشاءاللہ. ساتھیوں نے 3 دن لگا. ابھی استیمے میں بھی ساتھی پہنچے ہوئے. مستورات ابھی جون کی جماعت وہاں ٹھہری تھی, تو مستورات کے اندر بھی یعنی اثر سے پہلے کام ہوا پہلی مرتبہ. اچھا. مستورات میں بھی کچھ محنت ہوئی وہاں؟ ہاں جی. الحمدللہ. نہیں ملتے تھے اس دن, تو امام آنے سے. گشت کے علاوہ بھی وہاں جاتے ہو؟ جی. کتنی مرتبہ جاتے ہو ہفتے میں؟ بس ضرورت, جب ضرورت ہوتی اس کے مطابق. ضرورت ہوتی. اور 3 دن کی جماعت آپ کی کتنی بنتی ہے؟ ایک ہی جماعت. ایک جماعت بنتی ہے. کتنے آدمیوں کی ہوتی ہے؟ 8-7 آدمیوں کی. اس میں ذمہ دار قسم کے ساتھی کتنے ہوتے ہیں؟ 3-4 ہوتے ہیں. 3-4 ہوتے ہیں. وہی ساتھی جاتے ہیں, نئے ساتھی بھی آتے ہیں 3 دن میں؟
बस 4 वजू हमारे है मस्जिद व जमात में पाबंदी से, 8 में से 4 पाबंदी से बैठते हैं, वो लोग जुड़ जाते वो जुट जाते हैं। हैं जमाते को। कितनी देर रवानगी की बात होती है? जी कितनी देर रवानगी की बात होती है? नहीं होती, और कारगुजारी? कारगुजारी हम ही ले लेते हैं। अच्छी बात। आपको तो पता है क्या करके आए हो, तो आपको लेने की क्या जरूरत है? यानी वो मस्जिद व जमात में जो साथी नहीं जुड़े थे, पूरा जो काम से उनको की पूरा मैदान से मेहनत हुई थी, भाई चलना है उस इलाके की तकाजे, हमारी भी चलें। जरूरत है, और तो उनको वापसी- कारगुजारी और देते। वापसी की बात होती है? कितनी देर होती है वो कारगुजारी वापसी होती है? और जमात के आखिर के दिन के अंदर छिल्ली मजलिस वही कर वही लेते जमात में ही कर लेते कर हो। लेते। कभी आप साल भर में नकद जमात बनाकर लाए? साल भर में नहीं, कुछ इससे पहले हुआ ऐसा। इस साल में नहीं आए? इस साल में। तशरीफ रखिए। आप हजरत ने सारी बातें सुनी। ये जो फजर की मजलिस है, इसी की फिक्र दिलाने के लिए है। आप 5 अमाल आपको सुनाने के लिए नहीं है, 2.5 घंटे सुनाने के लिए नहीं। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं हमारी जमात में, वो कहने लगे कि 2.5 घंटे के इतने हाफिज जो होते हैं कि अगर 2.5 घंटे बयान करने बिठाओ तो 2.5 घंटे को 2.5 घंटे में बयान करेंगे। 2.5 घंटे को वो हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, वो ये कह रहे थे। तो खड़ा करूं मैं उनको, आपको देखना है उनको? बात मुझे सही लगी। अब ऐसा हो गया है कि काम समझाने वाले अलग हो गए, काम करने वाले अलग हो गए हैं। जो समझाते हैं वो करते नहीं है, जो समझाते हैं वो अक्सर करते, तो करने वाला मजमा अलग हो गया और समझाने वाला मजमा अलग हो गया, और नहीं करते हैं और फिर जोर जोर से समझाते हैं। तो हमको समझना भी है, समझाना भी है, और कौन कौन ऐसा करेगा? अच्छा, ऐसा कौन कौन करेगा? खाली हम समझाने वाली जमातें समझाएंगे, बाकी करने वाला ऐसा कौन कौन करेगा? ये जो फिक्र यहाँ जो फजर में बात होती है ना, वो इसलिए होती है कि इतने सालों से ये बातें सुनने के बाद अभी ये एक तो जिंदा नहीं हुई, और जो हुई है उसका निज़ाम टूट गया है। अब देखो ये तालीम की बात, 6-7 आदमी अभी तक सुन रहे हैं, और अगर एक मस्जिद का मुसलमान 24 घंटे में 10 मिनट भी अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनेगा, तो ये मुसलमान कैसा होना चाहिए, वो कहां सुनेगा? भाई तालीम में क्या है? हमारी फजाइल अमाल की सदकात में 5 चीज़ों की तालीम है। कितनी चीज़ों की? मुसलमान के ज़िंदगी के 5 शौबे हैं, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक। ये 5 चीज़ें मिलकर दीन बनता है। फजाइल अमल, फजाइल सदकात में इन 5 में मुसलमान को कैसे रहना चाहिए वो लिखा है। सबसे पहले ईमानियात, हिकायत सहाबा, उसके 12 बाब है। अल्लाह और उसके रसूल पर जानो माल कैसे लगाना, अल्लाह के साथ ताल्लुक, नबी के साथ का ताल्लुक, वो लिखा। उसके बाद इस्लाम के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, वो मुसलमान में कैसे होने चाहिए वो लिखा है। फिर उसके बाद सदक़ात आप उठाओ तो सदक़ात में मामलात लिखे, हलाल क्या, हराम क्या, हराम का निवाला पेट में चला जाए तो क्या होगा, किसी के एक बालिश ज़मीन दबा लें तो क्या होगा, वो लिखा। फिर उसके बाद माशरत, अम्मी के क्या हुकूक, अब्बा के क्या हुकूक, बीवी के क्या हुकूक, पड़ोसियों के, भाई बहनों के, वो माशरत और अखलाकियात। ये 5 चीज़ें एक ईमान वाला रोज़ अगर नहीं सुनेगा तो फिर उसका जहन मुसलमान वाला कैसे बनेगा? इसके लिए हमारे हजरत ये कहते हैं कि मस्जिद की तालीम में हमारे मस्जिद की मुसल्ली बने, उसको हम हदफ बनाकर मेहनत करें। अभी कैसा हो गया पता है? वो मुसल्ली बैठते हैं मस्जिद में जो खुद अपनी ज़ात से कुछ फिक्रमंद है और तालीम में बैठना है ये धुन है उनको, तो बैठ जाते हैं। हमने मस्जिद के मुसल्ली बढ़े हैं तालीम में, उसके लिए हम अमली तौर पर क्या मेहनत करते हैं, अपना जायज़ा लें। मैंने जैसे अभी मशवरे में कहा ना कि भाई बैठे बैठे ही, भाई माशाल्लाह हम आपसे कल मिलने आए थे, आपने नियत की थी मशवरे में बैठने की, भाई थोड़ी बैठ जाओ। इस तरह से हम जैसे मशवरे में बिठाने की नियत करते हैं, ऐसे तालीम मस्जिद में भी हो रही है। मैंने सलाम फिराई, मेरे दाएं बाएं लोग हैं, भाई आ जाओ थोड़ी देर तालीम, देखो अभी तालीम हो रही है। अगर ये 9 आदमी हैं, 9 के 9 एक एक, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, भाई ये ठीक नहीं हो रहा, भाई ये ठीक नहीं हो रहा। इतने अच्छे अल्लाह ने पैर दिए हैं, मजलिस छोड़कर जाने के लिए नहीं दिए हैं। जिसम अल्लाह ने इतनी अच्छी मजलिस छोड़कर जाने के लिए नहीं दिया है, अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। भाई आप जो खड़े हैं या तो बैठ जाओ या चले जाओ, या तो यहां बैठ जाओ या चले जाओ, या तो आप यहां बैठ जाओ या चले जाओ, ऐसा ना करो। ये फोन वाले बुजुर्ग कितने मजे से फोन पर बात कर रहे हैं। ये फोन वाले बुजुर्ग माशाल्लाह
हम मजमे को बढ़ाएं तालीम के मजमे को ऐसे ही अपनी मुलाकातों में हम जाएं, तालीम की अहमियत बोलें। हमारी मुलाकातों में एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है पता है? हम जब जाते हैं किसी की मुलाकात में, सलाम अलैकुम, वालेकुम खैरियत भाई, तबीयत ठीक है भाई, मस्जिद से आए थे, वो 3 दिन में आपका नाम था तो उसके लिए हमने आपके मुतालिक सोचा था, क्या ठीक है ना? फिर बोलो यही करते हैं या और कुछ करते हैं? अरे बोलो भाई यही करते हैं या और कुछ करते हैं? हमने 6 नंबर बोलना छोड़ दिया। मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तश्कील 6ठे नंबर पर है, उससे पहले 5 है, उन 5 को हमने छोड़ दिया है, तो फिर वो 5 चीजें जिंदा नहीं हो रही है। इसलिए गुजारिश है कि ऐसा ना करें, हम तबलीग को उसकी जगह पर रहने दें, हम मुलाकातों में 6 नंबर को बोलें। और हमने मुलाकातों का निज़ाम में पहले आपने देखा है मस्जिद के बाहर लोग दुआ करके जाते थे, याद है आप लोगों को कि मस्जिद से जैसे निकले दुआ करके जाते थे? याद है भाई? किसको किसको याद है? देखो इतने बड़े, अब कौन कौन दुआ करके जाता है जरा हाथ उठाओ। एक बहुत बड़ा मजमा दुआ भी नहीं कर रहा, हमने अपनी शक्ल छोड़ दी। अगर छोड़ देंगे तो उसकी बरकतें खत्म हो जाएगी। दुआ करके जाएं और उसके बाद 6 नंबर की बात करें। हजरत फरमाते थे तश्कील तो 6ठे नंबर पर है, तो 6ठे नंबर में फिर हम वो बात करके फिर मकामी अमाल की बात, उसमें तालीम की भी बात करें। तो गुजारिश है कि हम अपने अमले को बढ़ाने की फिक्र करें। एक आदमी हमारी तालीम ही नहीं सुनेगा तो मस्जिद के फिक्र वाला कैसे बनेगा? तो बड़ा हो गया अमला। इसके लिए हजरत फरमाते हैं ऐसे वक्त में तालीम करो जिस वक्त में ज्यादा से ज्यादा मजमा जमा हो सके। दूसरा, मैंने उनको पूछा घर की तालीम, तो उन्होंने कहा 6 घरों में हो रही है, और जबकि 40 आदमी वक्त लगाए हुए हैं। तबलीग में जाने के बाद भी तालीम की अजमत जिंदगी में नहीं आई है। हम सोचे कि हम तालीम अल्लाह के रास्ते में उनको भरते क्या है? घर की मेहनत सबको भरो। देखो हम अक्सर हमारा मजमा जो है ना घर की मेहनत को बहुत नजरअंदाज हल्के से ले रहा है, हालांकि घर की मेहनत सबसे वजनदार अमल है। आप ये समझते हैं कि आप तबलीग में लग जाएंगे तो आपके घर में तबलीग आ जाएगी? इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये पागलपना है हमारा। हमारे तबलीग में लगने के बाद घर में तबलीग नहीं आ सकती जब तक के घर वाली तबलीगी जहन की ना बने। घर जो होता है ना वो घर वाली से होता है। घर जो होता है वो किससे होता है? उसको कहते हैं घर वाली, वो घर की वाली होती है, उसका घर पर वजन होता है, वजन। और बच्चे जो हैं वो भी उसके ताबे होते हैं। बच्चे किसके ताबे होते हैं? हम किसी को पूछे हैं भाई तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो क्या पूछते हैं? तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? ऐसा पूछते हैं? तुम्हारी पितृभाषा, मदर टंग। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक मर्द का बनना एक मर्द का बनना, और एक औरत का बन जाना एक नस्ल का बन जाना। और यूं फरमाते थे औरत का दीन दरवाजे, मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक, औरत का दीन घर के अंदर तक। बच्चों पर भी माँ का असर है, तो उस माँ का जहन बनना चाहिए। अब तो कहूं कि माँ बच्चों पर तो माँ का असर, बच्चों के अब्बा पर भी माँ का असर है। हाँ, बच्चों के अब्बा पर भी माँ का असर है। अच्छा मुझे आप बताओ कि हमारे घर में लड़के लड़की का पैगाम रिश्ता है, हम चाहते हैं वो रिश्ता नहीं करना और बीवी चाहती है वो रिश्ता हो जाए, क्या होता है? अरे बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। हो जाता है। वो चाहती है ना हो, हम चाहते हैं हो जाए। होता है नहीं होता? जरा जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि बच्चों के अब्बा पर भी बच्चों की अम्मी का असर है। बच्चों के अब्बा पर किसका असर है? और दूसरा जुमला कहें तो गलत, आपको जरा खोटा लग जाएगा, डॉक्टर को ज्यादा लगेगा। हमारी नहीं चलती है, हमारी। अभी हम बैठे हुए हैं, बीवी के 1 2 3 4 फोन आ जाए, डॉक्टर साहब यहाँ दिखेंगे भी नहीं, मैं भी नहीं दिखूंगा, जाऊंगा फोन पर बात करने, क्या बात हो गई? अच्छा तुम सब ये इज्तिमा में आए हो, अगर बीवी आड़े आ जाती और ना आने देती तो आ सकते थे? अलग हुआ तो करो भाई। हमारे घरों पर उसका, और आखिर जमाने की निशानियों में है, आखिर जमाने में औरतें किबला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किबला का क्या मतलब? किबला किस तरफ है? यहाँ है, तो यूं करके नमाज पढ़ूंगा हो गई, तो औरत किबला हो गई, मतलब वो जो कहेगी वही होगा, उसी की तरफ चेहरा करना पड़ेगा। हाँ जन बताओ क्या करना है? वो जो कहेगी जैसे करेगी ऐसा होगा। एक जमात का किबला औरतें हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि अब भी थोड़ा बहुत वो किबला हो ही चुकी है। वो जिस रुख पर जाएगी पूरे घर को उसी रुख पर ले जाएगी, उसी रुख पर। उसको अल्लाह ने जहन बनाने का जबरदस्त मलाका दिया है, जहन बनाती है वो। उसको अल्लाह ने घर की रानी बनाया है, तो जहर बनाने का, डाइवर्ट्स करने का, जहन बनाने का उसको जबरदस्त मलाका दिया।
जबरदस्त। घर में 5 बच्चे होते हैं, 5 बेटियां होती है, 5 बेटियों की विचारधारा अलग, 5 बेटों की विचारधारा अलग, पर माँ ऐसी खिला होती है कि सबको संभाल कर रखती है, अलग अलग विचारधारा के। 5 छोकरों की 5 बहुएं आई, 5 छोकरियों के 5 जमाई आए, 5 जमाई। और जमाई जो होते हैं वो माथे पड़ेला होता है, जमातों में बहुत हैरान नहीं करते, तो कहते हैं तो जमाई राजा एवी तो बातों करे, नहीं होता ऐसा। वो डराता है ना, शादी के दिन से ही डराता है, मुझे इतना फर्नीचर चाहिए, मुझे इतने कपड़े चाहिए। आज भिखारी बन के जाता है ना, भिखारी बन के नहीं जाता, सफेद कपड़ों का भिखारी, सफेद कपड़ों में भिखारी होता है, मांगता है। तो खैर वो माथे पड़ेला होता है जमाई। तो आपको नहीं कह रहा हूँ मौलाना साहब, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हमारे फारूक का भाणिया है, तो फारूक हमारा दोस्त, तो उसका भाणिया भी हमारा दोस्त, तो उसको मैं कहूँगा डॉक्टर आपको नहीं कहूँगा कि आपने क्या क्या मांगा था। अरे भाई बात समझ में आ रही है, सोने वाले जाग गए। मैं अर्ज ये कर रहा था, तो औरतों को हम नजरअंदाज न करें, उसको अल्लाह ने जहन बनाने का जबरदस्त मलका दिया है, जबरदस्त। उसका जो जहन बन जाएगा एकदम यूं पलटा खिला देगी। फिरौन जो है ना, फिरौन, उसको एक ज्योतिष ने कहा था कि तेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा, वो तेरे राजपाट को खत्म कर देगा। तो उसने पूछा अच्छा वो ज्योतिष कौन से खानदान में होगा? कि ये खानदान में होगा। अच्छा, उस खानदान के सारे लोग बच्चे जितने पैदा हो सबको खत्म करो ताकि ना रहे बांस। 12,000 बच्चे उसने मार दिए उस खानदान के। अल्लाह को उस बच्चे को पैदा करना था, तो उसकी माँ के दिल में बात डाली, संदूक में डालो। तैरता तैरता संदूक पहुंचा फिरौन के दरबार में, दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं। संदूक आया, खोलो इसको, क्या है? खोला, हो बच्चा निकला। तो फिरौन का पहला जुमला, ओ यही मूसा है, खत्म करो इसे। अब बीवी बीच में आ रही है, ना 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 ये मूसा नहीं है। अच्छा तू कैसे कह रही है? वो खानदान तो इस तरफ रहता है, ये संदूक तो इस तरफ। अब जहन बना रही है, क्या बना रही है? ये संदूक तो इस तरफ से आया है और वो तो इस तरफ रहता है। जहन बना रही है, जहन। इतना जहन बनाया, इतना जहन बनाया, गोद में उठाया। तो वो बच्चा जो था ना, वो अजीब, मूसा अलैहिस्सलाम कभी दाढ़ी पकड़े, कभी नाक में उंगली उसके मारे, कभी आंख में, कभी से मुझे मारता है। तुम तो यार खामखा माथे पड़े ले हो, छोकरे तो ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा तो फिर हम ट्राई करेंगे कि ये छोकरा है या फिर मूसा है। अच्छा क्या ट्राई करेंगे? कि मैं थाली में अंगारा रखता हूँ और मोती रखता हूँ, देखता हूँ किसको उठाता हूँ। तो जैसे ही रखा तो मूसा अलैहिस्सलाम मोती पकड़ने जा रहे थे, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अंगारे पर हाथ रखा और मुंह में रख दिया अंगारा। वो लुकनत आ गई थी जबान में, तो देखो छोकरा ये समझता नहीं इसलिए अंगारा पकड़ लिया। हाँ बात तो तेरी खरी है। ये औरत जहन बना रही है। कौन बना रही है? इतना जहन बनाया कि उसको भरोसा हो गया यही फिर मूसा है। पर औरत के जहन बनाने पर वो उस बच्चे को नहीं मार सका। ये बच्चा पैदा ना हो इसके लिए 12,000 मार दिए, और वो अब उसकी गोद में है, बीवी के जहन बनाने पर नहीं मार सका। 40 साल उस घर में रहा, 40 साल। कितना बड़ा जहन बनाया। हमारे नबी को सबसे बड़ा जहन बनाने में धारस अम्मी जान खदीजा का है। जब सीना चीरा गया तो वो घर आकर सो गए चादर ओढ़कर। तो अल्लाह ने आयत उतारी, ओ चादर ओढ़ने वाले उठ जाइए। तो उठे, कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, सीना चीरा गया और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। तो अम्मी जान ने सुना, अच्छा तो चलो फला मौलाना साहब के पास, वरक़ा इब्न नौफल के पास, वहाँ लेकर गई और वरक़ा इब्न नौफल से पूरी बात सुनाई। कहा अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ है, फिर तो ये नबी हैं और इनके साथ और आगे ऐसा होगा, ऐसा मक्के वाले निकालेंगे और ये करेंगे। तो नबी कहने लगे, मुझे मक्के वाले निकालेंगे, मुझे ही निकालेंगे। तो घरवाली ने देखा कि मेरा शौहर खौफ खा रहा है, तो एकदम बीच में आ गई और क्या कहने, ना 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 ना, आपको कोई नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? वो जहन बनाना शुरू किया, इन्नका लतसिलुर रहीम। आप कौन हैं? आप तो टूटे हुए रिश्ते जोड़ते हैं। लतुसद्दिकुल हदीस, आप तो सच्ची बातों में सच्चे हैं। आप तो बातों में तक़रीब दईफ, आप मेहमान नवाज है। तईन अला नवाइबिल हक तक्सिबुल मादूम, परेशान हलों को मुआविन बंद। इतनी दलील, 1 2 3 4 5 6 दलीलें दे डाली। इतनी धारस बंधाई, हमारे नबी को तसल्ली हो गई। तो सबसे पहली तसल्ली देने वाली घरवाली थी। उस घरवालियों को हमने छोड़ दिया है, नजरअंदाज न करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में ये चीज जिंदा हो जाए तो हमारे घरों में घरवाली को फिक्र में ले। मगर घरवाली को कैसे फिक्र में लेंगे? उसको 2 चीजें देनी है। घरवाली को फिक्र में लेने के लिए रवैयों को नरम करें, लाड़ प्यार वाले रवैये। कैसे रवैये बोल रहे हैं डॉक्टर? लाड़ प्यार वाले रवैये। लाड़, बीवी को लाड़ देने की चीज है, प्यार देने की चीज है। वो प्यार देने की चीज है, वो लाड़ देने की चीज है। हुजूर इतना लाड़ देते थे, लाड़। उनका नाम था आयशा। कभी मोहब्बत में कहते थे या आयशो, यूं फरमा दिया आयशो।
कभी यूँ फरमाते थे या हुमैरा, यूँ फरमाते थे या हुमै, कैसा मज़ा आ रहा है ना, या हुमैरा, ये मज़ा देने की ही चीज़ है, ये मज़ा देने की चीज़ है। घर में जाकर बुजुर्ग बन गए, और मैं तो कौन, मैं तो जिम्मेदार हूँ, वहाँ सब सूखा हो जाएगा। घर में बुजुर्ग नहीं बनना, घर में घर वालों की तरह रहना। हुजूर इस्लाम घर वालों की तरह गम्मत करते थे। घर में गए तो अम्मी जान खाने बैठी है, तो उन्होंने खाना खाया, यूँ गोश्त उठाया रख दिया, अम्मी जान ने अब हुजूर ने वही उठाया। जहाँ अम्मी जान ने होंठ मारा था, होंठ दांत मारे थे, वहीं इसी को स्टैंड बनाया। खाया नहीं, पहले उसको दिखा रहे हैं, देख मैं वहीं से खा रहा हूँ जहाँ से तूने खाया। ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो दिखानी पड़ती है, कहने से नहीं होती, दिखानी पड़ती है। मुद्दस्सिर समझा, सूखा सूखा रहेगा तो सब सूखा हो जाएगा। अम्मी जान ने पानी उठाया, गिलास यूं होंठ लगाया, रखा, हुजूर ने वही गिलास उठाया, वहीं होंठ लगाया। अभी लगाया नहीं है, दिखा रहे हैं, देख मैं भी वहीं होंठ लगा रहा हूँ जहाँ तूने होंठ लगाया था, दिखा रहे हैं। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो दिखाने से होती है। तो घरों में रवैये नरम करने हैं और लाड़ देना है। क्या देना है बोलो? लाड़ देना है। अगर तुमने ये दे दिया, शादी उससे की है, दिल भी उसी को देना है, खरीदी भी उसी के लिए करनी है, बातें भी उसी की करनी है, पराई की नहीं, उसके वफादार रहने हैं। तो फिर वो आपके फिक्रों में शरीक, वो आपकी मोहब्बत के प्यासी है, अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। और हम बदल जाएं तो उसको वो रवैये दें, तो फिर वो आपकी हो जाएगी। वो कैसी हो? हम साहबा फरमाते हैं, हमने हुजूर की वो कितनी हो गई? साहबा फरमाते हैं, हमने आधा दीन अम्मी जान से सीखा, आधा दीन हमने अम्मी जान से। इनको भी लाड़ दें, बच्चों को भी लाड़ दें घर में। हम जब चाहें तब बच्चे मुंह चढ़े हुए होते हैं, हम मुंह चढ़े होते हैं जरा रौब झाड़ने के लिए। रौब झड़ते झड़ते बच्चे भी झड़ जाएंगे। घर में रौब नहीं झाड़ना, घर में बच्चों की तरह रहो। बच्चों में कैसे रहते हुजूर? बच्चे घर में होते थे तो हुजूर यूं घोड़ा बनते थे और यहाँ बिठाते गोल गोल घूमते थे यूं। उनकी नवासी हजरत उमामा यहाँ बिठाकर बाजार जाते थे, ऐसे घर में रहते थे। मैं तो घर में जाऊं, मजा ले किसी की कोई चूंचा करे। अच्छा, फिर तो तुम बच्चों के अब्बा नहीं हो, फिर तो तुम पुलिस वाले हो, बीवी का शौहर नहीं हो। तो हमारा इंतजार करें हमारे घर वाले। क्या करें बोलो? इंतजार करें। जब हसन हुसैन बड़े हो गए ना, तो अल्लाह के नबी कहते आ जाओ चलो कुश्ती लड़ो। तो लड़े, धड़ाधड़। तो जीत गया, शाबाश शाबाश। उसकी अम्मी खड़ी थी, इसको शाबाशी दे रहे हो, इसको नहीं दे रहे हो? तो कहने लगा, देख जिब्राइल खड़ा है, वो भी इसी को शाबाशी दे रहा है। बड़े बड़े बच्चे हैं, हम कहते हैं ये बच्चे मस्ती करते हैं। ओ भाई, बच्चे ही मस्ती करेंगे क्या? बच्चों का बाबा मस्ती करेगा? अरे भाई, घर में बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो हम घर के माहौल को खूबसूरत बनाएं और अपनी मस्तूरात को अल्लाह के रास्तों में लेकर जाएं, वो जहन बनाए। देखो, एक मरतबा मर्द जाता है तो एकदम जहन पलटा खाता है, औरतों का वक्त लगेगा एकदम पलटा खा जाएगी। इसलिए एक तो मजबूत मस्तूरात को अल्लाह के रास्तों में लेकर जाओ। हम बच्चों को नहीं संभालेंगे, औरतें संभालेगी, और औरतों को तबलीग संभाल लेगी। इसलिए एक तो रवैये अच्छे बनाओ, अल्लाह के रास्ते में लेकर जाओ। और मोहल्लों की मस्तूरात जितनी भी है, ये जैसे भाई से मैंने पूछा कब 12 तालीम की बहनें हैं लेकिन 2 ही आ रही है, भाई 2 ही आएगी। हम पूरे हफ्ते मर्दों पर मेहनत करते हैं, मर्दों पर गश्तों में, मुलाकातों में, हफ्तावार इज्तिमा में, तो भी कमजोरी आती है। वो औरतें जो वक्त लगा कर आई, कवाइफ वाले हैं, उनके जिम्मे हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो जाए हो जाएगी, खो जाएगी। हमारे हजरत फरमाते हैं, हर 30-40 मकानों पर एक तालीम का हल्का कायम करो, हर 30-40 मकान पर। अब इन औरतों के जिम्मे तुमने आते ही काम दे दिया तो वो संभल जाएगी, अब हमने काम ही नहीं दिया तो खोवा जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए वायरिंग कर डालो सारे मोहल्लों में मस्तूरात के तालीम के हल्के, हर 30-40 मकान पर तालीम का हल्का, हर 30-40 मकान पर तालीम का हल्का। तो सारी औरतें इसमें जकड़ में आ जाएगी। अगर इन औरतों को तुम तालीम के हल्के से नहीं जोड़ोगे, हमारा मर्द खोआ जाता है, हालांकि उसको कितने जोड़ने की मेहनत है। औरतों को तो हर 3-4 महीने पर काम करने वाली बहनों को जोड़ते हैं, तो 3-4 महीने में वो एक बार जोड़ी जाती है। अब उसके जिम्मे काम ही नहीं है तो वो भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, पूरे मजमे से घर की मेहनत भी मोहल्ले की, और मस्तूरात की मेहनत में जाल बिछा दो। हर 30-40 मकान पर एक तालीम का हल्का, और फिर उसके बाद हर 3-4 महीने पर सारी काम करने वाली बहनों के जोड़ करो और उनकी कर्जदारी लो, और आगे की बात समझाओ। आप लोग कर्जदारी लेते हो? इनकी काम करने वाली बहनों की कर्जदारी लेते हो? हर 3-4 महीने पर जोड़ करते हो? कितने पर करते हो? हर 3-4 महीने पर करो। मर्दों को हम इतनी बार जोड़ते हैं तो कमजोरी है, अगर औरतों को 6-8 महीने पर जोड़ोगे तो कमजोरी कैसे दूर होगी? हर 3-4 महीने पर। भाई बात समझ में आ रही है? करोगे महरम के साथ, और जहां है उससे आगे की तश्कीलें करो।
ठीक है इंशाअल्लाह। और भाई मैंने इनको 2 गश्तों का पूछा, आप सब ने सुना, कितने दुख की बात है। पहले गश्त में ये कमज़ोरी के 100% हमारा घर कवर नहीं होते। अगर हमारे मोहल्ले के लोग गश्तों में नहीं आएंगे, हमारी फिक्र के कैसे बनेंगे। दूसरे गश्त का पूछा तो कहने लगे 3 आदमी जाते हैं। हालांकि दूसरा गश्त तो हमको ये कहा कि उस मोहल्ले को 2 महीने तुम गश्त के लिए लो और 2 महीने में ऐसी लगातार मेहनत करो कि 2 महीने की मेहनत के बाद वो मोहल्ला अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन वो अभी हम ही नहीं खड़े होते, वो कैसे खड़ा होगा। इसके लिए अमला बनाओ, अमला। मैंने अमला बनाने की कई मिसालें दी, तो गश्त के लिए भी अमला बनाओ। पूरा अठवाडिया हमारी मस्जिद में मेहनत चले, गश्त में मजमा आए उसकी पूरा अठवाडिया मेहनत करो। अब कोई हफ्ते में मेहनत नहीं की और गश्त के दिन जाओगे 3 ही होंगे ना, फिर 3 के 2 हो जाएंगे। पूरी जितनी जमातें मस्जिद की है, पूरा अठवाडिया जितनी मुलाकातों में जाओ गश्त की तशहील करो। पूरे अठवाडिये में जितनों ने गश्त में आने की नियत की, गश्त के दिन उन सबको याद दिलाओ, भाई देखो आज गश्त का दिन है, भाई देखो आज गश्त का दिन है। तो वो सारे जब गश्त के दिन तुम याद दिलाने जाओगे तो तुम्हारे साथ आ जाएंगे। पूरे अठवाडिये में हम जब मुलाकातों में जाएं गश्त की याद दिलाओ, सबको गश्त की बात करो। जितने लोगों ने पूरे हफ्ते में या नियत की हो गश्त के दिन, सबको एकदम याद दिलाओ कि भाई देखो तुमने नियत की थी आज गश्त का दिन है। तो बोलो मजमा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम पूरे हफ्ते में कोई मेहनत ही नहीं करते, इसलिए नियत करो कम इंशाल्लाह पूरा अठवाडिया उसकी मेहनत करेंगे, करोगे। और दूसरे गश्त के जरिए से मतलब दूसरा गश्त नहीं है, दूसरे गश्त से मतलब यह है कोई नया इलाका 2 महीने में लें और उस महीने में 2 महीने में उस गश्त की बरकत से 2 महीने में उस जगह को खड़ा कर देना। दूसरा गश्त दूसरे गश्त के लिए नहीं है, नई जगह पर 2 महीने गश्त करके उस जगह पर नमाज आमाल जिंदा करना, खड़ा कर देना। उसके लिए हमारे हजरात ये कहते हैं कि दूसरे गश्त वाली जगह को अपने मोहल्ले का एक भाग बना दो। जैसे तुम अपने मोहल्ले के 4 मोहल्ले हैं, ये 5वां मोहल्ला, रोज 2.5 घंटे की यहाँ जमात घूमती है, वहां भी रोज 2.5 घंटे में आदमी भेजो। अगर इस तरह से लगातार पूरा अठवाडिया वहां मेहनत होगी तो 2 महीनों में इंशाल्लाह वो जगह पर कोई ना कोई शक्ल। खाली गश्त के दिन जाओगे तो कुछ नहीं होगा, पूरा अठवाडिया वहां जाएंगे तो कोई शक्ल बनेगी। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। इस तरह से कोई मस्जिद है जिसने पूरे 2 महीने में कहीं कोई इलाके में कोई काम किया हो, 2 महीने, ये तो 6 महीने तक करते रहे। हमारी गुजारिश है 2 महीने के बाद उसको बदल दो और जो 2 महीने के लिए नए वो 2 महीने में लगातार मेहनत करें, खाली गश्त के दिन ना जाएं। अपने मोहल्ले में जिस तरह रोजाना 2.5 घंटे की जमात फिरती है, ऐसे वहां भी रोजाना जमात फिरे तो इंशाल्लाह वो मोहल्ला खड़ा हो जाएगा। कोई है इस तरह का कि हमने 2 महीने में इस तरह से खड़ा किया? कोई है जो 2 महीने में हफ्ते में पूरा हफ्ता वहां मेहनत के लिए जमात भेजते हो, 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा भेजते हो? अब देखो पूरे मजमे में एक भी कर्जदारी सुनाने वाला नहीं है। अच्छा आपने ये सुना है पहले ये बातें जो अभी मैं कह रहा हूं कि उसको अपने मोहल्ले का हिस्सा बना लो और पूरा अठवाडिया वहां मेहनत के लिए साथी भेजो, आपने सुना है ये? अल्लाह भाई सुना है? किसने किसने सुना है जरा बताओ। तो अभी एक भी हाथ नहीं उठा रहा कि हमने किया था। तो आज भी आप इसी नीयत से सुन रहे हो कि हम ऐसा ही रहेंगे? है भाई, अगर ऐसा रहोगे इसका धड़ा सही नहीं होगा तो वो उसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। अब तो नियत कर लो कि इंशाल्लाह अब 2 महीने में जो मोहल्ला हमको दिया जाएगा लगातार मेहनत करके वहां कुछ ना कुछ अमल शुरू करवाएंगे। नियत करते हो? उस मोहल्ले को अपनी मस्जिद का एक भाग बना दो। कौन कौन ऐसी नियत मेहनत करेंगे? और भाई 3 दिन की आपने कर्जदारी सुनी, मैंने कहा बताया ना, तो ये कह रहे हैं कि एक जमात जा रही है। फिर मैंने पूछा कितने जिम्मेदार? भाई बैठ जाओ, चप्पल वाले बुजुर्ग बैठ जाओ। मैंने उनको पूछा कितने साथी जा, तो उसमें 4 अमीर होते हैं, 4 अमीर। अगर इस तरह से अमीर चले जाएंगे ये खयानत नहीं तो और क्या है? ये खयानत है, हमारे काम के साथ ये खयानत है। हमारे हजरात ने फरमाया नए नए लोगों का हम वक्त लगवाएं। भाई मुझे जब मैं 3 दिन लगा ही रहा हूं तो अल्लाह के लिए लगाऊं। तो हजरात ये फरमाते हैं कि हर एक पुराना साथी उसके 2 मुआविन दो और उससे कहो पूरा अठवाडिया तुम मेहनत करके, पूरा महीना 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात बनाओ। इनकी मस्जिद में इन्होंने सुना है 4 साथी एक साथ चले जाते हैं। अगर ये चारों साथी अपनी फिक्र करें और 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात बनाएं तो 4 जमातों की इस्तेदाद, 4 जमातें जा सकती है। लेकिन अब वो सब एक मिलकर चले जाएंगे तो उससे ये होगा कि नया खून तबलीग में नहीं आएगा, पुराने लोग जो है उन्हीं में तबलीग घूमती रहेगी। हमारे मोहल्ले के सारे लोगों के 3 दिन लगे। ये 3 दिन अक्सर तबलीग में दाखिल होने का दरवाजा है। अक्सर नया मजमा 3 दिन के रास्ते से आता है। अब हम लोगों को इस तरह ले ही नहीं जाएंगे तो फिर लोग कैसे दाखिल होंगे? इसलिए गुजारिश है कि एक साथ न चले जाएं। हमारे हजरात ने क्या कहा है पता है? हमारे हजरात ने कहा कि साल के शुरू में हर भलके के जिम्मेदार मस्जिद जाकर
मस्जिदों का तफक्कुद करें कि कितने यहाँ वक्त लगाए हुए साथी हैं, उसमें कितने अमीर मुआविन बन सके ऐसे साथी है। जितने अमीर बन सके ऐसों का महीने में हफ्ते तय करवा दो। उनसे खुद पूछो भाई तुम 3 दिन लगाना तय करो कि हम फला फला हफ्ते में जाएंगे, सालाना वक्त तय करवा दो। तो उससे वो जोड़ियां बनेगी 3 दिन की, साल की, चिल्ले की। उसके बाद माहाना जो मशवरा होता है, माहाना मशवरा, उस माहाना मशवरे में उस मस्जिद वालों को पूछो। मसलन ये भाई ने सुनाया अभी कारदारी कि हम 4 एक साथ चले जाते हैं। अब मसलन उनके वहां 4 जोड़ियां बनी, 4 जोड़ियां मिसाल के तौर पर, तो जो माहाना मशवरा होता है उसमें पूछें भाई तुम्हारे वहां तो 4 जिम्मेदार थे, 4 जोड़ियां बनी थी, फिर एक जमात क्यों गई? तो वो कहेंगे कि दूसरी 3 कमजोर पड़ गई है। तो उस मस्जिद वालों को माहाना मशवरे में फौरन कहो भाई ऐसा ना करो, देखो जो 3 जोड़ियां थी उनसे जाकर आप मिलो और उनसे कहो भाई इस हफ्ते तुम नहीं गए मगर आइंदा महीने जाना है। और पूरी मस्जिदवार जमात उसके पीछे लगी रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है तुमने माहाना मशवरे में इसकी फिक्र दिला दी तो उम्मीद है दूसरे महीने में 2-3 जोड़ियां काबू में आ जाएगी। फिर फरवरी में इसकी कारदारी पूछो भाई क्या हुआ तुम्हारी 4 जोड़ियों में से, तो सुनाएंगे 2 काबू में आई या 3, भाई चौथी रह गई, भाई दूसरे महीने में फिर चौथी पर मेहनत कर लो। इस तरह से हर माहाना मशवरे में जो जोड़ियां बनती है उसकी याद दिलाओ तो तुम्हारा एकदम काम ऊपर जाएगा। और देखो जिसकी 3 दिन की जोड़ियां काबू में आ गई इंशाअल्लाह उसकी चिल्ले 4 महीने की भी काबू में आ जाएगी। इसलिए हर मस्जिद वाले से हमारी गुजारिश है, हर हल्के वाले से, कि साल के शुरू में अभी जनवरी आ रही है तो साल के शुरू में एक मरतबा हल्के के जिम्मेदार हल्के की सारी मस्जिदों में जाएं, उनसे खुद पूछें कि हम आपके साथियों के साथ बैठना चाहते हैं, कौन से वक्त में आप साथी सब जमा कर लोगे। बास कहेंगे कि हमारी मस्जिद और जमात में आना, बास कहेंगे कि हमारे गश्त के दिन आना, हम सबको जमा कर लेंगे। उस वक्त उनके पास जाओ और तरगीबी बात करके जितने अमीर बन सकते हैं उन सब अमीर के एक अमीर और उनके साथ 2-2 माविन जोड़ियां बना दो और उनके माहाना और सालाना तय करवा दो। जो तय हो जाए फिर उसकी निगरानी माहाना मशवरे में करो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से एकदम तुम्हारा काम ऊपर जाएगा। करोगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। और मैंने उनको एक बात पूछी नकद जमात की कि लेकर आते हो, तो उन्होंने कहा नहीं पूरे साल में नहीं लाए, हमारा रवानगी ही नहीं हो रही है। अब रवानगी जब जमातों की नहीं होगी तो वो जो नया जाने वाला जमात में होगा वो रवानगी सुने बगैर जाएगा तो तबलीग किसको समझेगा। हमारे हजरात ने ये बात कही कि अगर रवानगी करने वाला न हो तो जमात का जिम्मेदार खुद रवानगी कर दे और चाहे जमात लेट हो चुकी हो बगैर रवानगी के न भेजे, बगैर रवानगी के न भेज, अच्छे से रवानगी करे ताकि जमात 3 दिन फारिग करके जा रही है, क्या करना है उसको समझ तो पड़े। इसलिए गुजारिश है कि बगैर रवानगी के जमातों को न भेजो, कम से कम 1-1.5 घंटा रवानगी होनी चाहिए। और वापसी में अच्छे कर्जदारी और वापसी की बात करोगे इंशाअल्लाह। देखो ये जो सुबह की मजलिस होती है ना, या तो हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है या सुस्ती में हम काम को आगे पीछे कर देते हैं, पूरा धड़ा ही खराब हो जाता है, जिस पर पूरी बात घूमती है वही खराब हो जाती है। मैंने एक बात पूछी, आपने देखी ये अपनी जगह से थोड़ी हट गई, ये अपनी जगह से हट गई, तो ये उसकी जगह पर लानी है ताकि उसके नफे जाहिर हों। आइंदा करोगे इसको इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? और हर जमात को समझा कर भेजो नकद जमात लानी है। जमातें जब नकद निकालने पर पड़ेगी, जमात नकद निकालने पर, तो ये फिरेगी, ईमान बोलेगी, आखिरत को बोलेगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बंद कराएंगे, वरना मस्जिद में पड़े लाया नहीं करेंगे। इनको नकद जमातों में अल्लाह के बोलने में लगाना है। लगाओगे इंशाअल्लाह? हर मस्जिद से नकद जमात बनवाने के ऊपर लगाओगे और नियत करो कि अल्लाह ने इतनी बड़ी तौफीक दी है तो अब इसमें मौत तक लगे रहना है। कब तक लगे रहना है? कौन कौन नियत करता है मौत तक लगे रहने की? और उसके लगे रहने के लिए रोजाना अपने आप को आगे बढ़ाते ही चले जाओ। हज़रत शेख ने फज़ल सदक़ात में लिखा, जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसको आगे बढ़ा देते हैं और जो पीछे रहता है उसको अल्लाह पीछे ही कर देते हैं। तो अल्लाह ने हमको आगे किया है, आगे बढ़ते चले जाओ। और ये कभी ना सोचना कि कैसे होगा। आपको मैं बात पूछूं, दांत है तो सच बताओ अल्लाह चबाने का दे रहा है नहीं दे रहा है? जब से दांत आए हैं तब से आज तक अल्लाह ने चबाने का दिया। बोलो खरी बात है खोटी बात है? अल्लाह ने पेट दिया है, भरने का अल्लाह दे रहा है नहीं दे रहा है? जब से अल्लाह ने पेट दिया तब से अल्लाह ने भरने का दिया है। आपको तीसरी बात पूछूं, आपने जब तबलीग के लिए जिन तकाजों को अपने ऊपर ओढ़ा, चिल्ले में जाने का, 3 दिन में जाने का, तो अल्लाह ने उसके असबाब पैदा किए कि नहीं किए? जो जितने फैसले करता है ऐसी अल्लाह की उसके साथ मदद होती है। किताबों में आता है मदद नियतों पर है। अल माऊनतु ताती अला क़द्रिल माऊना, जो जितना बोझ उठाएगा इतना अल्लाह की मदद में आ जाएगा। जिसने जितना उठाना तय किया इतने राहें हमवार होती है, जिसने तय नहीं किया उसके लिए वो राहें हमवार होती भी नहीं। और तय वो करता है जिसका जितना अल्लाह पर भरोसा होता है। आदमी भरोसे पर तय करता है, भरोसे की कमजोरी तय नहीं करने दे, क्योंकि शैतान डराता है कि क्या होगा
अल्लाह कुरान में फरमाते हैं शैतान क्या डराता है, तेरे संजोग खराब हो जाएंगे, अश-शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र, संजोग खराब हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं संजोग के बनाने वाले हम हैं। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतन व फ़ज़ला, फ़ज़ल के कहते हैं अच्छे संजोग पैदा कर देना। तो जब अल्लाह पर भरोसा अच्छा होता है तो फैसले बड़े होते हैं, और अल्लाह पर भरोसे में कमजोरी आती है तो फैसलों में भी कमजोरी आती है। तो नियत करो कि हम अपने अल्लाह पर भरोसा टूटने नहीं देंगे, और जहां है आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। भाई नियत करते हो सब बढ़ते चले जाएंगे। इस मजमे में जो माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह चलते चलते 2-2 मरतबा 4 महीने लग गए हैं, ऐसा बहुत बड़ा मजमा होगा। अब वो तय कर लो कि इंशाल्लाह अल्लाह के नाम पर अब आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, और अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, अब इंशाल्लाह मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब सब जगह अपना खाता खोल कर जाएंगे, भांज नहीं मरेंगे। मौलाना उमर साहब फरमाते थे भांज न मरना। भांज ऐसी औरत को कहते हैं कि अकेली थी और अकेली ही मर गई, कोई पीछे रोने धोने वाला ही नहीं, दुआ करने वाला ही नहीं। हम भांज नहीं मरेंगे, हम इंसानों को कमा कर मरेंगे। भाई सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है इंसानों को कमा कर मरने की? तो फिर उसी पर नजर रखो, मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे ना डॉक्टर चाय पिलाएगा तो 10 आदमी में पूछेगा मौलाना साहब चाय अच्छी थी, इसका मतलब मौलाना को सुना रहा है कि मैंने मौलाना को चाय पिलाई थी। ये दुनिया स्वार्थी है। अल्लाह जो देगा ना तो ऐसा देगा कि किसी को कहेगा नहीं। दुनिया के लोग तो चाय भी पिलाते हैं तो 10 में चर्चा करते हैं। तो मांगो उसी से जो दे, कहे ना किसी से। भाई सब अल्लाह पर नजर रखोगे? अगर अल्लाह पर नजर है तो फिर फैसला करो कि इंशाल्लाह 2026 में बैरून जाएंगे। भाई सब नजर करते हो अल्लाह पर? कौन कौन नजर करता है? तो खड़े होकर अपने अल्लाह को अपने इरादे बताओ। चलो खड़े होकर जल्दी 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 जल्दी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, पहल हो गई। जल्दी जल्दी खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। जिसका अल्लाह पर जितना भरोसा इतने बड़े फैसले, जिसकी जितनी नजर अल्लाह पर इतने फैसले बड़े, जिसकी नजर जितनी अल्लाह पर इतने बड़े फैसले, जिसकी जितनी नजर अल्लाह